வண்டி என்ன 22652 உண்டு உண்டு உள்ள கதை உண்டு 1 2 நண்டு சிண்டு எல்லாம் மேல கீழே உருண்டு சிண்ட பிடிச்சிட்டு சண்டை போடும் சேட்டன் 2 அரக்கோணம் தாண்ட போறோம் அரக்கோணம் தாண்டியாதும் காப்பி வாயில வைக்க முடியலன்னு திட்டினாதான் நம்ம ஹாப்பி கும்பாக ஏறும் பாரு கல்யாண பார்ட்டி உள்ள பூந்து பார்த்து வாங்க டிடி ஸ்டேஷன்ல ஃபீல் பண்ணி பாய் சொல்லி ஏறி நெக்ஸ்ட் சீட்க்கு ஹாய் சொல்லி ஃப்ரெண்ட் ஆக்கும் பாரி பொட்டலம் கட்டி கொண்டாந்த இட்லி பொடி ஷேரி பட்டணும் ஃபீஸ் கட்டணும் காதல் வெட்டணும் எல்லா கதையும் கூறி 2 மணி நேரம் வாழ்க்கையெல்லாம் சேர்ந்து வாழ்ந்து கட்டி அடிச்சு அழுது சிரிச்சு சோர்ந்து ஊஞ்சு அடுத்த ஸ்டேஷன் வந்ததும் எழுந்து இறங்கி போன பின்ன ஆளு யாருன்னே மறந்து பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு வண்டியில் இருந்து இறங்கும் பயணிகளுக்கு தயவு செய்து வழிவிடுங்கள். லைஃப் கூட சிக்கு புக்கு ரயில் போலதான் டேஷனா தாண்டி தூரம் போகும் பேலன்ஸ் பண்ணி 2 தண்டவாளம் மேலதான் வளைஞ்சு நெளிஞ்சு கடல் தாண்டி போகும் அடிச்சு புடிச்சு நீ லோவர் பர்த்த வாங்கினாலும் பெருசு வந்து கேட்டா விட்டு கொடுக்க வேணும் தண்ணி வாங்கினவ வைஃபை பாஸ்வேர்ட் கேட்கலாம் ஸ்டீம் இன்ஜினால ஈவி ட்ரெயின்ல மாறலாம் ஏறுறவன் ஏறுவான் இறங்குறவன் இறங்குவான் வண்டி மட்டும் நிக்காம சிக்கு புக்கு மருதாணி வாசம் வீச விருந்தாளி வீட்ட சுத்த சந்தோஷம் குறையா போகாது முத்தாயி வெத்தல பாக்கு மொய் நோட்டு சீனி தட்டு மொரவாசல் முன்னே குடியேறும் பூப்பந்தல் நிழலா சூழும் துணையாக தோரணையும் செவ்வாழ மரமோ சேரும் பழவண்ணம் பூசி பலபலக்கும் வீட்டு சுவர் பசிச்சாயங்க நல்ல சோறு ஊரு மக்க ஒன்னா கொண்டாடும் ஒருவன் ஒருக்கு சேரும் சந்தோஷம் உலகத்தர கோயில் மேடையில ஒரு கல்யாணம் ஊரு மக்க ஒன்னா கொண்டாடும் ஒருவன் ஒருக்கு சேரும் சந்தோஷம் உலகத்தர கோயில் மேடையில ஒரு கல்யாணம் மணவாள கைப்பிடிக்க மகராசி தோள் சாய மணமேட ஏறி நின்னா மாங்கல்யமே இரு மனமோ ஒரு மனமா சேரும் ஒரு நேரம் இது
கரகோஷ கொண்டாட்ட கல்யாணமே பட்டு வெட்டி கோஷ்டி பச்சை கலரு புடவ பந்தி முழுக்க கூட்டம் பாசம் உணவாக நட்டு வளர்க்க கண்ணு மொட்டு செடிய ரோசா மனசார கொடுப்போம் அத நாங்க எல்லோரும் ஊர் மக்க ஒன்னா கொண்டாடும் ஒருவனூருக்கு சேரும் சந்தோஷம் உழக்கற கோயில் மேடையில ஒரு கல்யாணம் ஊர் மக்க ஒன்னா கொண்டாடும் ஒருவனூருக்கு சேரும் சந்தோஷம் உழக்கற கோயில் மேடையில ஒரு கல்யாணம்.
गुड इवनिंग दोस्तों। 8:08 हुए हैं। आज 12 जनवरी है। जनवरी का महीना भी आधा चले गया, 2023। एंड आज ये 216वां एपिसोड है कहते सुनते रेडियो जीन का, दैट कम्स टू यू ऑन 89.3 FM 2GLF एवरी थर्सडे फ्रॉम 8 to 10 PM इन द नाइट। अगर हो सके तो, नहीं हो, मोस्टली हो ही सकता है। एंड मैं हूं मनबीर सिंह कोहली और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने हमें ज्वाइन किया है। तो थोड़ी देर पहले अवजीत सरकार, क्रिस मल्लिका भद्रा एंड ऑफ कोर्स सुरेश मक्कड़ जी वर विद मी। अगर आप लोग अभी भी हैं वहाँ पर तो वेलकम टू कहते सुनते। आप इस शो को 89.3 FM 2GLF सिडनी में लाइव सुन सकते हैं, अपनी गाड़ी में, घर में। अगर आपके पास में रेडियो है, अगर वो नहीं है तो ट्यून इन के ज़रिए या फिर कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की ऐप पर। अगर वो भी नहीं तो फेसबुक पर हम लाइव हैं और यूट्यूब पर भी हम लाइव हैं। और ये कार्यक्रम वहीं पर रहेंगे, यूट्यूब पर और फेसबुक पर। तो इफ़ यू गिव इट अ मिस ड्यू टू सम रीज़न, और या आप बहुत कहीं बिजी हैं, तो आप इसको आके बाद में दोबारा सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और बहुत सारे ज़रिए हैं, जैसे मैंने कहा, देखने के, सुनने के। लेकिन या कंग्रेचुलेशंस, कल परसों मेरा ख्याल है सैटरडे को, यस, लोहड़ी है जो पंजाब में मनाई जाती है। एंड ऑफ कोर्स मकर संक्रांति का दिन होता है। एंड जोश व खरोश से काइट फ्लाइंग होती है बहुत सारी जगहों पर। तो कंग्रेचुलेशंस टू पीपल हु सेलिब्रेट दैट। एंड बेसिकली ये सारे जो इंडियन फेस्टिवल्स और बहुत सारे जो दुनिया के फेस्टिवल्स हैं, दे आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द मून। एंड ये विंटर सॉल्स्टिस का ख़त्म होने का टाइम आ गया है कि भाई विंटर्स जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पे विंटर्स ख़त्म होके दिन लंबे शुरू हो जाते हैं। तो ये उसका प्रतीक है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ ऑल कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर एंड लाइफस्टाइल एंड ऑल दैट। एंड फिर बाद में इनको धर्म के साथ जोड़ा गया और एक कल्चरल फेस्टिवल को धार्मिक बनाकर लोगों की लाइव्स के अंदर एक इसको बड़ा अच्छी तरह बुना गया है। सो दैट्स इट। बट हैप्पी मकर संक्रांति एंड पतंगबाजी, तो ये सब इसके बारे में बात करूंगा थोड़ी देर में। लेकिन आज क्या क्या होने वाला है शो पे, आज बहुत धमाकेदार चीज़ें होने वाली हैं। एक तो ये है कि भाई अविजीत सरकार आएंगे, अविजीत सरकार एंड तौफीक अहमद शेख। उनका जो 5 प्लेज हैं, स्टोरीज जो अविजीत सरकार ने लिखी हैं, वो उसके ऊपर जो 5 प्लेज हो रहे हैं फरवरी में 17th and 18th, we'll be talking about that. संजय देशवाल जी आएंगे। अर्जुन रामपाल इज कमिंग टू सिडनी और फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होगी हैरिस पार्क में। सो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, विच इज़ यूनिक कि अर्जुन रामपाल जो फिल्मी जगत के एक एक्टर हैं, वो आएंगे एंड ही विल अनफर्ल और हॉइस्ट, आई डोंट नो, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन वो करेंगे आकर हैरिस पार्क में। एंड ऑब्वियसली देर इज़ मीट एंड ग्रीट ऑल्सो। सो उनकी वो सब टिकटें वगैरह का भी इश्यूज़ हैं। सो वो सब होगा एंड उनसे बातें करूँगा। फिर ऑफ कोर्स ढंग की बात होगी। और टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट एम्पैथी, कि व्हाट इज़ एम्पैथी एंड इज़ एम्पैथी रिस्ट्रिक्टेड टू ह्यूमन बींग्स। सो इस पर मैं ढंग की बात करूँगा। नीरज नंदा जी आएंगे, ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन न्यूज़ लेकर, साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न से। एंड आई विल ऑल्सो बी हैविंग क्रिस मल्लिका भद्रा। एंड क्रिस आज बात करेंगी कि शुड पेरेंट्स बी फॉरगिवन जब वो बच्चों के साथ झूठ बोलते हैं। तो सो ये सब होने वाला है। लेकिन अगर आपको जुड़ना है इस कार्यक्रम के साथ, तो व्हाट्सएप का नंबर है 0449 004 053, 0449 004 053 इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप दुनिया भर में कहीं से भी कर रहे हैं तो +61 449 004 and 053 ये नंबर है यहाँ का। तो यू कैन सेंड अ मैसेज, वी कैन कनेक्ट विद यू, या फेसबुक पर भी आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं एंड कनेक्ट हो सकते हैं। सो ये सब होने वाला है आज कार्यक्रम में। आई होप यू विल स्टिक अराउंड, आई होप यू विल जॉइन अस। एंड इसके बाद में कि भाई ये पतंग, काइट फ्लाइंग एंड मकर संक्रांति एंड लोहड़ी, ये क्या चीज़ है, आपकी क्या मेमोरीज हैं। एंड ऑफ कोर्स ये मेरा हर हफ्ते का सवाल रहता है कि आपकी मूवी रिकमेंडेशंस क्या हैं इस हफ्ते की। आपने कोई अगर अच्छी फिल्म देखी है तो बताइएगा। एंड सुगंधा तिवारी जी हैज़ जॉइंड अस। हेलो सुगंधा जी, it's nice to see you doing many community things on Facebook that I see you. And of course Neeraj Nanda ji has also joined us. Hello, he's saying from Neeraj Nanda South Asia Times. It's a 24/7 portal across Australia. And बड़े अफसोस की बात है कि मेलबर्न में there was
an attack on a Hindu temple, and if we can get somebody to talk about that कि क्या हुआ, और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे लोग कह रहे हैं कि भाई कोई दे हैव आइडेंटिफाइड कि किस लोगों ने किया है, तो अगर आप लोगों को पता है उसके बारे में, एंड इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट दैट, प्लीज़ डू लेट अस नो. अगर आपको, या इफ़ देयर इज़ एनीबडी हु वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट, वी आर हैप्पी टू इंक्लूड देम ऑन दिस. सो ये सब होने वाला है आज के शो में. आपको अगर किसी भी विषय पर बात करनी है तो प्लीज़ डू कनेक्ट, क्योंकि ये कार्यक्रम का नाम है कहते सुनते. मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन आई वुड लव टू सुनते फ्रॉम यू. थोड़ी सी म्यूजिक एंड देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू. होवे मैं किता तेरा यकीन तेरिया यादा ना देवे मैनू जी वे मैं किता तेरा यकीन तेरिया यादा ना देवे मैनू जीण तेरी अखां विचों डुलदे ने नी मैं फिरदा वांग फकी होर पावे मिला दे यार नू रब्बा वे मिला दे यार रब्बा वे मिला दे होर पावे मिला दे यार नू रब्बा वे मिला दे यार रब्बा वे मिला दे यार तू ते जानदा है सारी मेरे यारा ते बित्ती मेरे नाल सोहणिया जिन्ना मर्जी मैं चाहवा के भुलावा भुलदी ना तेरी याद सोहणिया जिन्नी कीती वे मैं तेरे ਲਈ वफा ओनू मिल गईयां मैनू वे सदा ओ रब्बा वे मिला दे यार नू रब्बा वे मिला दे यार नू छेती आ जावे आवे तेरी यादां देवे ना मैनू जीण सोहणिया ए जुदाई तो चंगी मेरे रब्बा तू दे दे मैनू मौत सोहणिया ओ तेरा विचों दे दे मेरा साथ वे तू हत्थां नाल फड़ मेरा हाथ ओ रब्बा वे मिला दे यार नू रब्बा वे मिला दे यार रब्बा वे मिला दे ओ रब्बा वे मिला दे यार नू रब्बा वे मिला दे यार रब्बा वे मिला दे यार सो दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते, एंड आई हैव बीन जॉइंड बाय मीता जी एंड मीतानंद जी, एंड वो कह रही हैं कि हेलो मनबीर जी, हैप्पी लोहड़ी टू यू एंड योर टीम टू, एंड हैप्पी लोहड़ी टू यू मीता जी, एंड आई होप आप की सेहत और सारा कुछ सही रहे. एंड अनु कुलकर्णी जी, इफ़ यू आर स्टिल देयर, हेलो, कैसी हैं आप? एंड सुगंधा जी, आई डिडंट हियर एनीथिंग एल्स फ्रॉम यू आफ्टर दैट. आई होप यू कैन जॉइन अस. तो मैंने जैसे बताया था कि एक बड़ा घिनौना अटैक हुआ है एक on a Hindu temple in Melbourne, and while we condemn it, but उस ग्रुप को आइडेंटिफाई किया गया है कि आई मीन नॉट द पुलिस, लेकिन लोग कह रहे हैं. सो ये अब तक ऐसी बातचीत ही है. सो आई वुड लाइक टू कंडेम दैट कि भाई ऐसा किसी भी आई मीन नॉट इवन रिलीजियस प्लेस बट कहीं पे भी नहीं होना चाहिए. एंड whether it is whether it's a synagogue or whether it's this is not permitted. This is wrong and it should not happen. And I think जो भी पुलिस का एक्शन है वो उस पर होना चाहिए. हाँ, बट ये अफवाहें और ये सब ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना विदाउट एनी बेस, हाँ कि भाई आपके वहाँ पे कोई लिख गया है तो ठीक है भाई, आई मीन, बट ऑल दैट. सो आई वुड लाइक दैट टू, एंड सोमेश सिब्बल जी कह रहे हैं कि आइडियल थिंग to do would be that the Gurdwara should issue a statement. Yeah, but and ये जो चीज़ है ना कि भाई
because I wear a turban, so I have to now apologize कि भाई किसी ने खालिस्तान का स्लोगन लगाया. No, I'm not responsible for them, and neither is anybody else. And the law and order has to take precedence. Like any, we don't hold people responsible if some misguided people from that group have done something stupid. Yeah. So yeah, I condemn it, but I am not responsible for it, and so I will not take responsibility. And I think as whether it's an attack on a gurdwara, it's an attack on a mandir, or it is an attack on a church, it is to be condemned. Lekin it is not one individual or one group's responsibility just because some members of that group are misguided. So yeah, that's what I think. But yeah, अगर कोई ठोस and क्या होता है कि ये सब जो आजकल चल रहा है ना कि भाई किसी को भी ब्लेम कर दो, बोल दो, सोशल मीडिया पे डाल दो, everybody is a newspaper, everybody is a television station, कुछ भी बोल दो, and without any evidence. So वो सब भी हो रहा है. And I would like the police to get involved, and I would like the police to catch these people and identify these people. फिर हम लोग बात करेंगे कि भाई कौन थे. लेकिन just because somebody has a keyboard and they can write anything, I'm not interested. But yes, अगर आपके पास में पुलिस की कोई evidence है and the police is charging somebody, then of course I would like to. And this is a very dangerous trend जो शुरू हुआ है कि भाई एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप को, जैसे हैरिस पार्क में भी जब लड़ाइयाँ हुई थी तो वहाँ पे भी यही था कि भाई ये फलाना ग्रुप है और ये वो ग्रुप है. And while it was basically a few people that were fighting over I don't know what, क्योंकि पुलिस ने नहीं कहा है कि भाई it was a political attack. ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई political groups एक दूसरे को अटैक कर रहे थे. These were individuals. And उनके पीछे no political group took responsibility. So similarly, अगर यहाँ पे कोई political group responsibility ले रहा है इस attack की, तो I would like to know that, and I would like to make sure कि ये authentic है, not just because किसी ने उठ के बोल दिया कि भाई हाँ ये तो फलां group थे. So I'm not going to listen to that. But yes, if you have evidence and if the police is agreeing with that evidence, then of course. नहीं तो मैं I can do anything. I can write something on the wall and say ये उस group का fault है. I'm not going to indulge in such stupid self-appointed जो होते हैं ना. I mean that's a very Indian मीडिया पे भी ये चलता है कि ग्रुप्स को ब्लेम कर दो और फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि इसके बाद में तो कुछ होता नहीं, सब भूल जाते हैं, कल दूसरी लड़ाई शुरू हो जाती. So they're trying to bring that here, and I don't think that's right. Zahid Minaz Saab has joined us from Townsville, and Zahid does Radio Dosti every Monday night, and he's a fine, he's got some fine ideas, and he's trying to bring peace between India and Pakistan and to improve dosti between the two countries. So thank you, Zahid, for listening. And Sanjay Deshwal ji has joined us, and he's saying hi. So Sanjay Deshwal ji, president हैं of Little India Harris Park Business Association के, and yeah, he does a lot of other community things. So ये सब है. Let me play some music, and of course, अगर आप मुझसे disagree करते हैं, ये जो attack हुआ है on the temple, Hindu temple in Melbourne, और जो मैंने कहा है, so please do let me know, क्योंकि it's very important कि आपका जो व्यू पॉइंट है वो ज़रूर मुझे जानना है. ये नहीं कि भाई यहाँ से खुद मैं कुछ बोल के निकल जाऊँ. That's not how it works. कहते सुनते on 89.3 FM 2GLF. ख्यालों के मांझों से बुन रहे हैं दुनिया, उलझी उलझी गांठों में सिल रहे हैं दुनिया. कुछ कट रही है, छिल रही है ये उंगलियां. कुछ कट रही है, छिल रही है ये उंगलियां. रास्ता खोजे ना पे उंगलियां. And Parvinder ji has joined me. Parvinder, thank you. Thank you for everything in my life. कहेंगे बातें अब वही जो अक्सर होती नहीं. ये फलसफे है दिल की किताबों में लिखे. कहेंगे बातें अब वही जो अक्सर होती नहीं. रोशनी के मंजर धुंधले होते जाएंगे.
अक्सर होती नहीं। ये फलसफे है दिल की किताबों में लिखे, कहेंगे बातें अब वही जो अक्सर होती नहीं। ये फलसफे है दिल की किताबों में लिखे, कहेंगे बातें अब वही जो अक्सर होती नहीं। ये फलसफे है दिल की किताबों में लिखे, कहेंगे बातें अब वही जो अक्सर होती नहीं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते। मैं मनबीर सिंह कोहली हूँ एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा ये जो टेंपल का इशू हुआ है मेलबर्न में, वेयर इट हैज़ बीन अटैक्ड और वहाँ पे डिफेस हुई हैं दीवारें वगैरह, इट्स डिप्लोरेबल वट एवर इज़ हैपनिंग। और हम लोग ये 21वीं क्या 22वीं 21वीं सदी है ना, ये तो 21st सेंचुरी, एंड आर वी सच इडियट्स कि हम लोग अभी भी ऐसे वाली चीज़ें करेंगे एज ह्यूमन बींग्स। दिस इज सो 18th सेंचुरी कि ये सब पागलपन जो होता था। अभी लोग पढ़े लिखे हैं एंड आई होप कि नन ऑफ अस इज एनकरेजिंग दिस डिप्लोरेबल बिहेवियर। इट्स वेरी सैड। एंड व्हाट इज ऑल्सो सैडर इज कि भाई किसी ग्रुप का नाम लगा देना, क्योंकि आपको अगर ग्रुप कोई आइडेंटिफाई हुआ है तो पुलिस को दीजिए, पुलिस शुड इशू अ स्टेटमेंट। आप फ्रॉम व्हाट आई बीन टोल्ड बाय नीरज नंदा जी, मेलबर्न में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस ने अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं इशू किया है। सो जब तक पुलिस स्टेटमेंट इशू नहीं करती, आई डू नॉट वांट टू आइडेंटिफाई और से कि भाई किसने किया ये सब, क्योंकि ये सब अफवाहें हैं। एंड इट इज़ वेरी ईजी कि आप किसी का भी नाम लगा दें एंड बाद में क्या होता है, कुछ प्रूव होता है, नहीं होता है, बात खत्म हो जाती है। हैरिस पार्क में लड़ाइयाँ हुई, खालिस्तानी ग्रुप्स, ठीक खालिस्तानी ग्रुप्स, व्हाट हैपेंड, वेयर आर दोज ग्रुप्स, पुलिस ने क्या किया है? एंड आइदर द पुलिस इज यूजलेस या आपकी जो एलिगेशंस हैं वो झूठ रही हैं। सो इट नीड्स टू बी क्लैरिफाइड, बट एनी वे, सो आई पुट दैट असाइड एंड आई वेट कि नीरज नंदा जी जब ये आएंगे तो उनके पास में स्टेटमेंट है टेम्पल से, एंड वी विल रीड आउट दैट स्टेटमेंट एंड वी विल ऑफ कोर्स गिव इट अ फेयर चांस। बट या अच्छी बात ये है कि लोहड़ी है, एंड लोहड़ी का जो दिन होता है, अभी तो ऑफ कोर्स यहाँ पे समर्स चलती हैं, एंड द आइडिया इज कि भाई इट सिग्नल्स द एंड ऑफ विंटर। सर्दियाँ ख़त्म होती हैं नॉर्थ में, ख़त्म होती हैं यानी कि कम होनी शुरू हो जाती हैं, एंड वहाँ पर आग जलाकर उसके आसपास लोग डांस करते हैं, लोग बातें करते हैं, फैमिली गेट टुगेदर, एंड रेवड़ियाँ खाई जाती हैं, एंड मूंगफली तोड़ के खाई जाती है, एंड ऑफ कोर्स उसके साथ में सब धार्मिक चीज़ें भी होती हैं। लेकिन आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। और हम लोग क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में और यहाँ पे गर्मियाँ हैं, तो एंड बुश फायर का सीज़न होता है, सो इट्स वेरी डेंजरस टू डू अ लोहड़ी हियर। बट फिर भी आई मीन आई हैव डन इट इन द पास्ट, एंड थोड़ा कंट्रोल्ड रखना पड़ता है उसको। बट प्लीज़ डोंट, अगर आपके वहाँ पे कोई फायर बैन है या कोई रिस्क है, सो प्लीज़ डू नॉट लाइट द लोहड़ी या होली जिसको बोलते हैं, लोहड़ी, हाँ प्लीज़ मत जलाइएगा। लेकिन या गेट टुगेदर विद द फैमिली, हैव अ गुड टाइम, एंड सो दैट्स लोहड़ी। एंड मैं उसका थोड़ा सा गीत भी पेश करूँगा, लेकिन मैं नहीं गाऊँगा, लेकिन आई विल स्पेयर यू दैट, आई एम नॉट गोइंग टू सिंग दैट। लेकिन हाँ, और ये जो बात हो रही थी कि भाई काइट्स, मकर संक्रांति है, तो गुजरात में और महाराष्ट्र में मकर संक्रांति पतंगें उड़ा के मनाया जाता है। एंड बेसिकली काइट्स की क्या हिस्ट्री है कि जो पतंगे हैं, दीज वर इन्वेंटेड इन चाइना, जहाँ पे इसका मटेरियल रेडी था, जैसे सिल्क फैब्रिक था उसकी सेल बनाने के लिए, सिल्क उसके धागे के लिए, मांझे के लिए, धागे के लिए, एंड बैम्बू, जो पतंग बनाने के लिए बैम्बू बड़ा स्ट्रॉन्ग एंड लाइट होता था, तो चाइना में दिस वाज ऑल अवेलेबल। एंड ये 5th सेंचुरी BC में चाइनीज़ फिलोसफर्स ने इसको आइडेंटिफाई किया था कि 549 की ये पतंगों के बारे में उन्होंने जिक्र किया, 5th सेंचुरी BC, सो आज से 2700 साल पहले। एंड बाय अबाउट 549 AD paper kites were used as a message for a rescue mission. So पतंगों के ऊपर मैसेजेस लिख के उसको भेजा जाया करता था।
And Chinese sources जो they describe kites for measuring distances. तो पतंग उड़ा के they would measure कि कोई चीज़ कितनी दूर है, हवा को टेस्ट करने के लिए कि किस तरफ बह रही है, कितनी स्ट्रांग है, एंड आदमियों को उठाने के लिए भी, लिफ्टिंग, सिग्नलिंग के लिए, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए. एंड जो चाइनीज़ जो पतंगें थी, दे वर फ्लैट, वो ऐसे बोर्ड नहीं हुआ करती थी, एंड दे यूज्ड टू बी रेक्टेंगुलर. एंड बहुत सारी काइट्स जो उसके बाद में दे वर इंट्रोड्यूस टू कैम्बोडिया, इंडिया, जापान, कोरिया, एंड ऑफ कोर्स वेस्टर्न वर्ल्ड में. और वेस्टर्न वर्ल्ड में जो पतंगें हैं, ऑफ कोर्स वो थोड़ी सी अलग होती हैं इंडिया वाली, वो, एंड दीज आर वेरी डिफरेंट काइट्स. बट अगर आप जाएं गुजरात में या आई मीन एवरीवेयर जहाँ पर इंडिया में पतंगें उड़ाई जाती हैं, तो वो एक कम्पिटिटिव स्पोर्ट होता है. तो इट्स एग्रेसिव, वो एक दूसरे की पतंग काटते हैं, एंड ऑफ कोर्स इट्स गुड फन, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे और डायनेमिक्स हो जाती हैं. सो दिस इज़ द ब्यूटी अबाउट इंडिया, कि इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, इतने सारे कलरफुल फेस्टिवल्स हैं, इतने सारे मीनिंगफुल मज़ेदार फेस्टिवल हैं, एंड फॉर सेंचुरीज हम सब ये इकट्ठे मनाते हुए आए. एंड इट्स वेरी सैड टू सी कि भाई ये वाला जो हमारा सोशल फाइबर है, इसके अंदर थोड़े थोड़े कुछ ब्रेक्स आ रही हैं. सो इट इज़ वेरी सैड, एंड आई होप कि ये ना हो, एंड आई होप वी don't have to keep talking about this nonsense that is happening at the moment. And it's really really sad. And Zahid Minas कह रहे हैं बसंत. Yes, of course, ये बसंत का महीना है, and you can send love to your beloved. वो कह रहे हैं Zahid Minas साहब कि ये जो मौसम है, ये जो बसंत का, कि आप अपने प्रेमी को या प्रेमिका को मैसेज भेज सकते हैं. So Zahid, अगर आपको मैसेज भेजना है अपने प्रेमी या प्रेमिका को, तो आप यहाँ के ज़रिए भेज सकते हैं. वैसे भी आप दोस्ती, रेडियो दोस्ती करा रहे हैं, सो दैट्स इम्पॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स सी इफ आई कैन प्ले दिस सॉन्ग फॉर लोहड़ी. लेट मी ब्रिंग इट अप इफ आई कैन, एंड इफ नथिंग इज कॉपी रिटन and deleted from here. So let's see if it plays. Okay. Oh, all right. So I don't want to play that ad, but let's play something else meanwhile. This is a typical Lodi song. And ये तेजवंत किट्टू म्यूजिक एकेडमी की तरफ से है. वेलकम टू द शो पूर्णिमा मेनन जी. आप भी ट्रैवल कर रही हैं वहाँ.
So after that very, very energetic song, I've got the very calm and collected Avijit Sarkar with me. Avijit Sarkar जी कैसे हैं आप? Very well, Manbir. Thank you. और आपको बता दूं लोगों को कि अभिजीत सरकार is a multifaceted personality that we are blessed to have in Sydney and in Australia. Musician, teacher, music teacher, mathematician, and what I love about him is he's also a cartoonist, and of course he's a philanthropist and many many things. So मैं हमेशा बोलता हूँ ये इंट्रोडक्शन पे ही मेरा आधा प्रोग्राम इंट्रोडक्शन पे निकल जाता है. और उनके साथ में also on your screen will be Taufeeq Ahmed Sheikh. Taufeeq is a director, he's an actor, a writer, and he does many many other things. And he's a good friend of ours. And that's something that Avijit and Taufeeq are both blamed for being good friends with me. आप लोग कैसे हैं दोनों? Very well, Manbir. Thank you. Thanks for having us. And Okay, Manbir, having a good day. Thank you. that's good. Stories by Avijit Sarkar on the 17th and 18th of February at Bankstown. इसके बारे में बताओ अभिजीत, ये आपके प्लेज हैं, आपने 5 प्लेज लिखे हैं, इनके बारे में बताओ. और डायरेक्टर्स कौन हैं, एंड व्हाट इज तौफीक्स इन्वॉल्वमेंट. एंड ऑफ कोर्स तौफीक, आई नो एवरीथिंग बाय द वे, मुझे सारे जवाब पता हैं, but I want to prize it out of you so that we can tell our listeners this. Yes, I wrote 5 plays. Well, they are 5 short plays, English plays. And these plays are, I wrote them with to make them a little different from the plays that people usually see. Mm-hmm. The themes, the twists and turns, they're a bit different. And they are short plays, 5 plays in one evening. 5 directors, Mm-hmm. very experienced, and about 27 actors. So it's a large project. Wow, And 27 actors. Taufeeq, and of course managed and curated by Taufeeq on his platform, from his platform, production platform, Crossover Stories. And I believe this is his first production from that platform. And I'm indeed privileged to be the writer for these plays. ये plays के बारे में कुछ बताइए अभिजीत. ये what kind of plays are these? Are these Indian plays? Are these plays where are they set? Are they universal setting है? क्या है इनके बारे में बताइए कुछ. They are set. I was thinking that most of them are set better in Australia, but the truth of the plays can also be moved to any other country. So the universal. Because human nature doesn't change anywhere. So we're all the same, whether we're in Australia, back in India, Pakistan, kahan bhi, jahan bhi ho. So these plays are, in that sense, from the human point of view, they are global themes. So Taufeeq, coming to you, I know you're a director. You've acted in plays. You've also sort of scripted many things. You've done short movies, short films, and all that. But this is a big project. बड़ा है ना ये? जी जी अब लग रहा है बड़ा है. जब सोचा था तब तो सोचा था कि हो जाएगा, लेकिन वो होता है ना कि जब आप किसी छोटे से बिल में देखते हो, अरे ये चूहे की पूंछ है, इसको खींचता हूँ, चूहा निकालता हूँ, और अब फिर आप पूंछ खींचते रहते हो, पता चला भाई ये अजगर कहाँ से निकल के आ गया. तो ये हुआ मेरे साथ. But this has made me a, what do you call, snake hunter. It's been an exciting journey, Manbir bhai. It's been a humbling journey, more so. और I think किसी भी आर्टिस्ट की लाइफ में अगर ये एक humbling moment आता है, तो ये होपफुली आगे जाके मेरे लिए बहुत काम करेगा. बट जहां तक मैंने देखा है, every time you humble yourself and you understand how big art in itself is, and what an insignificant part of art you are as an artist, you're a speck in that universe of stories. It's a very humbling and a very motivating experience, and I only thank the people who've supported and trusted this madness, including both of you gentlemen who are a part of this conversation today. It's just been a fascinating journey, and thank you. But tell me, Taufeeq, कि इसमें exciting moments क्या थे? अभी तो चल रहा है, और बहुत सारी scary moments भी होंगे, लेकिन जो what is driving you, वो क्या है? एक चीज है कि मैंने जब
मनवीर भाई यहाँ पे शुरुआत करी थी 2018 में अपने क्रिएटिव जर्नी के लिए और इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 14-15 ईयर सबैटिकल। मुझे एक चीज मोर लेस सबने समझाई थी, कभी डायरेक्ट शब्दों में कभी इनडायरेक्ट शब्दों में, कि अरे यार क्या कर रहे हो, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ सिडनी है, अंग्रेज है, इनका दबदबा है, कहाँ तुम अपना प्लेस, वेयर आर यू गोइंग टू फाइंड योर फुटिंग, तुम्हारा तो एक्सेंट भी हम्म, देसी है। हम्म, तो वो जो है could not be people could not be more wrong when they said they were probably cautioning me or probably saving me from the heartbreak, which I appreciate the intention. पर जैसे ही मैंने ऑस्ट्रेलियन थिएटर फ्रेटर्निटी में कदम रखा, आई वाज वेलकम्ड विद ओपन आर्म्स हम्म, and opportunities came in, and I tried to grab them without trying to put a lot of intrinsic value कि ये रोल कैसा है या काम कैसा है। हम्म, और वहां से अब स्ट्रेट डाउन 4 इयर्स, जिस तरह से आपने कहा, बहुत सारा काम मुझे मिला, हर किस्म का काम मैंने लिया क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था मुझे क्या करना है। आई जस्ट वांटेड हम्म, टू बी इन दैट स्पेस। और वो जर्नी से आज मुझे समझ में आया कि नहीं, वो बहुत सारे बायसेस हैं जो हम अपने दिमाग में रखते हैं। और हम्म, 4 साल बाद मुझे ये मौका मिला जी सर की स्टोरीज के थ्रू कि आई गिव बैक टू द कम्युनिटी दैट इज गिविंग मी सो मच, द साउथ हम्म, एशियन फ्रेटर्निटी, कि हाँ, जो आप सोचते हो वो है, वो उस तरह की दिक्कतें हैं, रेसिज्म है, बायसनेस है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, और वो हर जगह है। ऑस्ट्रेलिया इज नो एक्सेप्शन टू इट। हाउएवर, इट्स नॉट एट द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट यू थिंक, टू द पॉइंट दैट यू मेक इट एन एक्सक्यूज टू नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो ये क्रॉसओवर स्टोरीज ना ही एक अपॉर्चुनिटी है हमारे साउथ एशियन फ्रेटर्निटी को जाके देखने की कि ऑस्ट्रेलियन मेन स्ट्रीम थिएटर किस तरह से प्रोसेस ड्रिवन काम करता है, it is also an opportunity for the Australian theatre fraternity to हम्म, kind of come and work with South Asian actors हम्म, and see how differently and how emotionally we are so equipped with so many skills of acting, are which other actors spend years and years to learn. तो ये जो एक एक्साइटमेंट थी मेरी, दैट वाज द इनिशिएशन, और अवजीत सर ने मुझे उसमें सपोर्ट किया, व्हिच इज बेसिकली हाउ दिस ऑल कम्स आउट। एक और, लेकिन मैं एक्साइटमेंट वाली बात की बात करूंगा। अक्सर हम ये कहते हैं ना सर कि बच्चा अगर आपका है तो आप किसी और को नहीं दोगे उसको ग्रूम करने के लिए, हम्म, एंड दैट इज अ गिवन ट्रूथ। पर हम्म, जब अवजीत सर ने मेरे को वो स्क्रिप्ट्स दी, और मैंने आई वाज वेरी अपफ्रंट विद अवजीत सर, सेइंग के अवजीत सर, दिस स्क्रिप्ट्स विल बी डेवलप्ड। हम्म, और मैंने एक बस एक टिंकल छोड़ा था उनके पास कि मुझे मैं चाहता हूं कि इन 5 स्क्रिप्ट्स के माध्यम से मैं अपनी साउथ एशियन फ्रेटर्निटी को बताऊं कि स्क्रिप्ट्स डेवलप कैसे होती है। हम्म, it the willingness of Avijit sir as a writer to tell कि ठीक है फाइन, मेरी स्क्रिप्ट्स को कोई और जो है हम्म, डेवलप करेगा, एंड लेट मी ऐड अ लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू इट, वो भी पब्लिकली करेगा। हम्म, हम्म, वो विलिंगनेस जो है मुझे था कि नहीं, मुझे ये दिखाना है, ये अपनी फ्रेटर्निटी, अपनी साउथ एशियन कम्युनिटी को दिखाना है कि इट टेक्स अ होल टीम टू मेक अ गुड स्टोरी, जस्ट लाइक इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। yep. और So, ये सारी चीजें हुई थी जब लाइव जूम पे, इट वाज एन आई ओपनर फॉर द कम्युनिटी। सो दैट्स बेसिकली व्हाट आर द टू मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट्स व्हिच गॉट मी ड्रिवन। excellent. So, you spoke about differences कि जो western way of doing things and the subcontinental way of doing things, तो वो क्या उमड़ के आ रहा है सामने, स्पेशली व्हेन द रिहर्सल्स आर गोइंग ऑन, या जो डायरेक्टर्स हैं, जो वेस्ट, आई थिंक मोस्ट ऑफ योर डायरेक्टर्स आर नॉट फ्रॉम इंडिया, इज दैट राइट? वन ऑफ देम इज फ्रॉम इंडिया, जोशना शर्मा। अक्षत को आप कह सकते हैं, अक्षत गुप्ता जो है वो सेकंड जनरेशन इन अ वे, इज द फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट, बट ही इज कम सो अर्ली दैट ही इज, as he likes to call himself, coconut. He's very white inside. या, So second generation Australian है, और बाकी तीन of course, एक Italian origin film director है और अपनी खुद की theatre production चलाते हैं। दूसरी मेरी कास्ट है सूजन जॉर्डन, जो जिनीशियन थिएटर से ताल्लुक रखती थी, और यस, वी डिड passage to India together, and Paul Kinnan who's known for doing Shakespeare productions। ये सारे जो हैं, या ट्रू ब्लू ऑजीज कह सकते हैं आप एक तरीके से, with तो various क्या backgrounds। फर्क क्या था, और वो फर्क को कैसे टाइड ओवर किया? जी। अब एक हायरार्की होती है मनवीर भाई, हमारे जो देसी आर्ट्स कल्चर में होती है ना, कि एक्टर सबसे ऊपर होता है, हम्म, और फिर डायरेक्टर होता है, हम्म, और फिर एक्टर आता, फिर राइटर आता है। हम्म, ये जो है ना, ये हायरार्की वेस्टर्न थिएटर में उल्टी है। हम्म, सबसे पहले ऊपर राइटर आता है, हम्म, फिर एक्टर आता है, और सबसे नीचे डायरेक्टर आता है। और ये जो अच्छा, हम्बलिंग फैक्टर है ना, ये मुझे
एक्टर्स को भी दिखाना था और ये डायरेक्टर्स को भी बताना था कि दिस इज द बेसिक चेंज, और अगर जिस इस हायरार्की को जिस दिन आप समझ जाएंगे, उस दिन योर एक्सेप्टेबिलिटी इन मेन स्ट्रीम थिएटर, नॉट जस्ट इन ऑस्ट्रेलिया बट वर्ल्ड वाइड, विल चेंज. Okay, excellent. So, Avijit, आपसे बात करनी थी because you are also giving the musical score, which is very unique. कि प्ले आपने लिखा है and obviously आप उसका एक एक मूड एक एक सेकंड समझ सकते हैं, and of course the director will bring their own character to the play, but you understand the reason for the story, the background to the story, to the characters, and you are providing the musical score for that. And मैंने आपका वो थोड़ा सा सुना, as you called it, foreboding, बहुत सस्पेंसफुल एंड बहुत टचिंग था. उसके बारे में बताइए कि ये म्यूजिक एंड ये क्या, इज इट इंडियन म्यूजिक, इज इट वेस्टर्न, व्हाट इज इट? See, just as Taufeeq was saying, I also go by the director's vision. I'm at the end of it, I'm just a writer, but the director brings the stories to the audience. The director का vision, I give it the utmost importance. तो मैंने कई scores लिखे हैं. I wrote few tracks for each of the plays, but then I go and talk to the directors. Or directors बोलते हैं कि नहीं, my vision is this. I need something like that. So I change the music. I re-record something else. Fantastic. So that's how I've done it. In fact, I was working this afternoon on some changes based on visions of the directors. So that's how I work. I don't enforce my music on the play, as I don't enforce my script either. It depends on last the time we director. spoke, I asked you about कि भाई आपका कोई हाथ था auditions में, and you said no, you kept out of it, which is so hard. क्योंकि obviously I would find that very difficult अगर मैंने कुछ लिखा हो कि नहीं भाई ये तो मैंने ऐसे इमेजिन किया है, इसको ऐसे ही पैदा होना है, आप इसको कोई और चेहरा ही नहीं दे सकते हैं. How did you divorce yourself from that? I did, because it all depends upon who the directors are. If I find, and from the credentials of the director, and they came through Taufeeq, of course. And when I looked at the credentials, there's vast experience there, Manbir. I don't need to come. They would, from their experience, would read a script and they'll know exactly what is needed. I was absolutely sure about this, and I kept away, and it all worked very well. Wow, that is so hard. And Taufeeq, there were some hiccups in the location. वो क्या story थी, बताओ यार. जी, I mean some would be an understatement, of course. Hiccups हो रही थी शुरुआत से ही, all the way from the time that पहले तो मुझे veterans जो हैं हमारे South Asian के, वो लोग बोल रहे थे कि you have created chaos, you have created a disaster, और होना तो कुछ है नहीं, and all that was going on. So there were quite a few naysayers, जिस वजह से थोड़ा सा जो है ना दिल में कटोच थोड़ा सा था. But moving on, जब मुझे Hellenic Theatre ने कहा कि they'll be more than happy to host us, I was elated because it was one of my go-to theatres, जो बाहर से बड़ा ही unassuming tin shed लगता है, लेकिन जब आप अंदर जाते हो, you're just transported into the mesmerized Greek theatre format, and I was so looking forward to it. पर उनकी जो है unfortunately एक हफ्ते पहले, बिफोर दिसंबर ब्रेक्स, उनका मेरे पास कॉल आया. उन्होंने कहा कि they had to go into some emergency renovations, or they couldn't give they were not sure that the theater will be available. So एक हफ्ते पहले, उससे 2 हफ्ते पहले हमने शो अनाउंस कर दिया था. अगर वो नहीं भी करते तो शायद मैं उस वक्त क्लोजर पे आ जाता कि अच्छा ठीक है चलो बंद करते हैं इसको. बट नहीं, ऐसा था कि अब बात आ गई थी कि the people have paid their money and they have to get a show, and there is no turning back from there. So hattered scattered, फिर वही मरता क्या ना करता. We had to kind of just look for every possible options, and one of the options was कि यार कोई community hall में लेके कुर्सियां बिछा के stage बना के किसी तरह perform कर लेंगे. उस तक के लिए ready थे. और again, I mean, tremendous support by the whole team, directors included, writer included, कि हाँ करो, चले करेंगे. Turns out to be Bankstown Arts Center took us on board, and 3 दिन before the Christmas holidays, they were willing to spend hours with me to just kind of understand what's happening, what's my requirement, and eventually they said yes, and उन्होंने verbal confirmation break से पहले दी और written confirmation परसों दी. and in typical showbiz style, सब अनाउंस हो गया, सब कुछ कर दिया, एंड बैकग्राउंड में परमिशंस ली जा रही हैं और कॉन्फर्मेशंस हो रही हैं.
बिल्कुल। और मुझे डायरेक्टर से भी ये छुपा के रखना पड़ा था, क्योंकि जब मैंने उनको बोला था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो एक आध डायरेक्टर से मैंने बात करी थी, क्योंकि मुझे तो वेन्यूज़ नहीं पता थे कहाँ से कहाँ, कौन से रूट था। तो 1-2 डायरेक्टर्स को बताना पड़ा, बट मेजरली हमने इसको पूरा जो है कंटेन्ड रखा, सिर्फ प्रोडक्शन टीम और अवजी सर के बीच में, 1-2 डायरेक्टर्स के साथ। और जब सब व्हेन द सुनामी जो है वो पास हो चुका था, उसके बाद कलयुग के बाद जब दोबारा सतयुग आ गया था, तो तब हमने कहा कि लो आ जाओ, एन्जॉय द सतयुग। तो बट वो कलयुग और सतयुग के बीच का जो प्रलय काल था, वो सब हमको पूरी प्रोडक्शन टीम को अकेले झेलना पड़ा। So, Avijit, tell us, where is it happening, how to get tickets, etc. Bankstown Art Center Mhm. in Bankstown, of course. It's a great venue, and Taufeeq sent me the photographs and the videos today, and just enlightening and very, very nice. It's a true theater venue. I think people will really love it in this place. And कभी होने Really. वाला है, वो भी दीजिए details. 17th and 18th of February, 3 shows. Mhm. 17th, you have got one at 7 p.m. On 18th, you have got at 4 p.m. and 7 p.m. 2 shows. Wow. And the tickets are available. They're online now in good seats. I believe I was told they're going quickly on Premier Tickets. People can log in or look at one of our posters. It's all there. All the social media posts में हैं, सारी चीजें हैं. Yes, of course. Tickets जा रही हैं, and I would entreat people, and I would request people to come and join us, because this would be theater of a different kind, I assure you, Manbir. And I have a lot of respect for people जो theater करते हैं, because you can't do, I mean, you can, but I think theater is a very serious business. It's not like कि, just coming and talking nonsense and going away. It takes a lot of effort. There are lots of people that have to come together, and you can't have too many foolish people in one place, so somebody will call you out, and that's the seriousness of theater, I think. कि कोई बोल देगा नहीं ये क्या बकवास कर रहे हैं भाई, I don't want to do this. So in the end, hopefully you'll get a good product. And it's, as for the Indian continental community, I think it's important that we, and I always think like this, that you can tell the character of a person or community through what they are reading, through what they are watching. आपको कंट्रीज के बारे में पता लग सकता है अगर आप उनके अखबार उठा के देख लें कि भाई कैसी खबरें सुन रहे हैं लोग. आप उनका टीवी चैनल ऑन करें तो आपको पता लगेगा कि ये किस लेवल की इंटेलेक्चुअल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं. You can tell a lot by what people are watching, what they are reading. You can tell a lot about them. That's what I think. And I think if we are watching good theater like we are supposed to have on the 17th and 18th, it'll tell a lot. It'll reflect on our community. So thank you for bringing that to our community. And it's not easy to motivate people, but I would like to motivate. अगर जो भी हमारे listeners हैं, please come forward. Please come and watch this show. It should be a great 2 or 3 days of creativity there. And thank you very much, Taufeeq and Avijit, who are exceptional at their skills. Thank you very much for this opportunity. Thanks, Manbir. Thanks for having एक us. छोटा सा shameless plug-in अगर कर दूं मैं, कि Please. आज पंकज उपाध्याय और मैं जो है मिले थे बैंक्सटाउन आर्ट सेंटर पे, और जिस तरह से उसने शूट किया है आज पूरा स्कोप, I hope that people will really love that video. There are 2 reasons. एक तो crossover stories और stories by Avijit Sarkar कैसे amalgamate हुए वो, और दूसरा, how do you actually get there and get a glimpse of the venue itself from inside out, and the whole journey. कहाँ पार्क कर सकते हैं, कैसे अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो कैसे Beautiful. आएंगे, बस से आ रहे हैं तो कैसे आएंगे, तो ये सारी चीजें बहुत important होती हैं logistically speaking, and Pankaj has beautifully covered that, and I'm excited to see his video coming out, and it is also his first video for Out of the Box, जो उसकी series of videos है, तो I am very excited to see that. और क्रिस मल्लिका भद्रा जो आपके साथ अभी कुछ देर में जुड़ेंगी, इस वक्त मसरूफ हैं मेरे डायरेक्टर्स के साथ बात करने में, और शी इज पिकिंग अ लिटिल बिट ऑफ मोर स्टोरीज फ्रॉम देम, कि इनसाइड स्टोरीज क्या चल रही है, क्या भसड़े पीछे चल रही हैं. तो प्लीज ऑडियंसेस से आपकी जो है रिक्वेस्ट है कि वक्त चलते जो है उनकी वीडियोस के लिए भी प्लीज कीप एन आई आउट, एंड प्लीज जॉइन इन द एक्शन. Excellent. Look, thank you very much, Taufeeq, and thank you, Avijit. And I'm sure we'll talk over the next few weeks again. And I'll keep showing your poster to our people in case that helps them come to the show. But thank you for doing this for our community. Okay. Thank you, Manbir bhai, for having us. Thank you, Manbir. Look Thanks for after having yourself. us. Have a good night. Thank you. Bye.
So this was Taufeeq Ahmed Sheikh, a writer, director, and of course Avijit Sarkar, who's musician, writer, director, and many other hats that he wears. दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते, एंड ऑफ कोर्स सुमन माथुर, हमारी कार्यक्रम की दोस्त और मेरी को स्टार हैज़ जॉइंड अस. सुरेश मक्कड़ जी इज़ वाचिंग, एंड जस कंवर सिंह जी इज़ वाचिंग इन दिल्ली. पंकज यादव हमारे दोस्त इज़ वाचिंग, एंड नमिता मतानी जी, कैसी हैं आप नमिता जी? एंड अतीव डंग इन मेलबर्न इज़ ऑल्सो वाचिंग. पालू वॉज ऑल्सो वाचिंग, थैंक यू. एंड दक्षा चौहान जी. सो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं. एंड पंकज वीर पूना में हमारे दोस्त और बहुत पुराने दोस्त, एंड ही इज़ ऑल्सो वॉचिंग. सो दोस्तों आप लोग कहते सुनते देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एंड मैं हूं मनबीर सिंह कोहली, एंड आई प्ले सम म्यूजिक एंड देन आई गेट नीरज नंदा जी. सी रातें बहका हुआ सा है समा है, हल्की हल्की सी बातें गूंजा हुआ है आसमां. सा है समा है, हल्की हल्की सी बातें गूंजा हुआ है आसमां. ये बातें खामोशी के सुनो ना, क्या बोले शाम की सुनो ना, ये संग संग बदले सुनो ना, है ये बदली बदली सी उम्र. कहीं चल भी खो जा जरा, कैसी है ये मदहोशियाँ, तेरी है ये परछाइयाँ, पल भर का है हिस्सा तेरा आसमां. लम्हों से भी कह दे जरा, तेरी भी तो कुछ खामियाँ, लहरों से भी सुन ले जरा दास्तां. सो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते. मैं हूं मनबीर सिंह कोहली, और ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को आता है सिडनी से 8 से लेकर 10 बजे तक रात में 89.3 पर, 89.3 FM 2GLF, एंड वी आर ऑल्सो लाइव ऑन फेसबुक, वी आर ऑल्सो लाइव ऑन यूट्यूब. और मेरे साथ लाइव जुड़े हैं नीरज नंदा जी फ्रॉम साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न, southasiatimes.com.au. इनका न्यूज़ पोर्टल है वेर यू कैन फाइंड द लेटेस्ट stuff that is happening in India and Australia and everywhere else around the world. नीरज जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मनबीर जी. आपको लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो. आपको भी, एंड मकर संक्रांति, एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग एल्स दैट इज और हैपनिंग. मकर संक्रांति मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. अच्छा, बर्थडे आपका? नहीं, उस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी होती है. वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल. तो हैप्पी मतलब वेडिंग है एनिवर्सरी कि टू यू. आई समटाइम्स से कि आई शुड गेट अ गोल्ड मेडल. ना मेरे 40 साल पूरे हो लगता गए. है. तो सबसे चलिए शुरू करें, अगर आप हुक्म करें तो. प्लीज डू. आज तो अतीब जी भी आ गए हैं, तो बहुत खुशी की बात है. माथुर जी भी हैं. हाँ सुमन जी, हाँ जी. तो नमस्कार सबको, हेलो. लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद. और ये अच्छा दिन माना जाता है. बहुत एक बहुत ही अच्छी चीज मानी जाती है. और हम लोग जब दिल्ली में थे तो बहुत इसको मनाया करते थे. आई थिंक मेलबर्न में भी कुछ इवेंट्स हो रहे हैं इससे कनेक्टेड. और अब चलते हैं. कहते हैं कि नेगेटिव न्यूज होती है. एनीवे, व्हाटएवर इट इज. तो Thank- पहले मैंने
कुछ और न्यूज शुरू करनी थी, लेकिन वो जो इंसिडेंट हुआ है मेलबर्न में, मैं उसी से ही शुरू कर देता हूँ। बड़े अफसोस की बात है वो तो। और अपनी बात को, बड़ी अफसोस की बात है, और मैं समझता हूँ कि किसी भी धार्मिक जगह पे, चाहे किसी की भी हो, और कोई भी करे तो उसको कंडेम तो करना ही चाहिए हमें, मतलब बिल्कुल, आई एग्री। इट हैज टू बी कंडेम्ड। एंड एंड जो पुलिस है, जो लॉ लॉ को देखने वाले अथॉरिटीज हैं, उनके हाथ में इस चीज को छोड़ देना चाहिए कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है, मतलब। करेक्ट। तो उसी खबर पे हम चलते हैं। तो मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर, मैं काफी, आज हाफ डे मेरा लगा है इसके ऊपर, जी। और तब भी न्यूज मुझे बहुत कम मिली है, मतलब। हम्म। तो उसमें जो कोई निचोड़ हुई है कि 11 तारीख को, यानी कि कल शाम को, हाँ जी। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने जो बैप्स का टेम्पल है मिल पार्क में, मेलबर्न में, हाँ जी। उसमें उसकी दीवारों पर ऑफेंसिव ग्राफिटी लिखी, मतलब। हम्म। तो उसमें कुछ भारत के बारे में भी लिखा हुआ है और कुछ और चीजों के बारे में भी लिखा हुआ है उसके ऊपर, हम्म। जो कि अगर कोई पढ़े तो हो सकता है किसी को पसंद ना आए वो, मतलब। हम्म। ऐसा पॉसिबिलिटी है पूरी। या एब्सोल्युटली। और ये भी ऐसा महसूस होता है, क्योंकि मेरी नजर पड़ी थी उस पर, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं क्या हुआ मेरे को, कि उन लोगों ने ग्राफिटी लिखने के बाद वहां पे उसका वीडियो बनाया फिर, मतलब, ओके। और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। बड़े अफसोस की बात है यार। हाँ, अच्छा, अब ये मेरी नजर पड़ी उस पे, बट मैंने सोचा शायद कुछ इंडिया का है, तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इंडिया की तो बहुत ज्यादा खबरें होती हैं ऑलरेडी। हम्म। हर सब्जेक्ट पे अच्छी, सब कुछ होता है उसमें, अच्छी न्यूज भी जी। होती है, बुरी भी होती है, मीडियम जी। भी होती है। एनीवे, अब पता चला कि उन्हीं लोगों ने वो वीडियो उसको डाला था, और किसी ने उसको आगे फॉरवर्ड किया था, मतलब। हम्म। ये बट कल्प्रिट्स नहीं डाला था? हाँ, तो फिर मैंने, हाँ जी, आई थिंक ट्विटर के ऊपर था वो। ओह रियली? हाँ, और वो किसने डाला ये मेरे को ध्यान नहीं है, हम्म। बट था, यस, मेरी नजर पड़ी थी उसमें। हम्म। तो मैंने फिर जो बैप्स हैं, जो लोग टेम्पल के अथॉरिटीज हैं, हाँ जी। उनसे मैंने कांटेक्ट किया, और एक टॉप अथॉरिटी से हम्म। उन्होंने उन्होंने मेरे को स्टेटमेंट भेजा है बाप्स का। तो मैं उसको उसको उसका सम टोटल ये बता रहा हूँ आपको। जी वैसे मैं बताइए पढ़ बताइए। सकता हूँ, हाँ बट जी। इट्स ए लॉन्ग स्टेटमेंट, यू नो। हाँ जी। वो ये है कि उसकी हेडलाइन है अपील फॉर पीस, मतलब। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। उन्होंने अपील की है, अपील फॉर पीस, कॉमा, मिल पार्क, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। हम्म। उसका सिर्फ मैं आपको पहला पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, मतलब। जी जी, थैंक यू। इंग्लिश में है। हाँ जी। We are deeply saddened by the anti-India graffiti at the gates of the BAPS Shri Swaminarayan Mandir in Mill Park, Melbourne, जी। Australia, by anti-social elements. The BAPS temple in Mill Park, like all temple of BAPS worldwide, is the abode of peace, harmony, equality, selfless service, and universal Hindu values. तो हिंदू टेम्पल है एक। जी। और मैं भी, मंदिर जी, कई दफा इस टेम्पल में वो लोग मुझे इनवाइट करते हैं, और मैं जा चुका हूँ वहां पे कई दफा, और वेरी गुड। मैं पीस वगैरह के साथ भी गया हूँ। हाँ जी। आगे इन लोगों ने ये कहा है कि दे आर थैंकफुल टू दी अथॉरिटीज गुड। और बेसिकली कि मेरी और ऑस्ट्रेलिया और भारत की और लोकल कम्युनिटी की, जो बैप्स के टेम्पल्स को हमेशा सपोर्ट करते हैं, मतलब। उन लोगों ने ये बोला है, और यू कैन लेट अस जॉइन इन वर्ल्ड वाइड प्रेयर्स, की शांति बनी रहे, बेसिकली ये अच्छी बात है। उन्होंने। मैंने उनसे बात भी की, और उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई ये हमारी अप्रोच यही है, और अगर हम इस स्टेटमेंट को पढ़े तो उसमें उन्होंने किसी को ब्लेम नहीं किया है, मतलब। दैट्स गुड। तो उन्होंने और आई थिंक कि ये जो वैंडलाइज करना, वो चाहे कोई भी काउंसिल करे, की दीवारें हैं, चाहे किसी का घर है, एंड चाहे वो कोई भी टेम्पल या रिलीजियस प्लेस है, इट इज़ रॉन्ग। एंड जो अथॉरिटीज़ हैं, दे शुड कैच दीज पीपल। एंड और जो खास उनका तौर पे अगर वो ऑफेंसिव लैंग्वेज हो उसके अंदर, तो फिर कोई भी उससे हर्ट हो सकता है, मतलब। बिल्कुल। एंड अगर एंटी इंडिया है तो तो बहुत तो ही शर्म की ये, बात है। हाँ, हाँ जी, तो इन लोगों ने अपील फॉर पीस की है, और किसी को खास ब्लेम नहीं किया है। तो उसके बाद मैंने जो विक्टोरिया पुलिस की मीडिया यूनिट है, उसको उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, और उनको मैंने फिर ईमेल भेजा एक, और उन्होंने मुझे जवाब दिया। तो उन्होंने मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी इसके हाँ। बाद। फिर उसके बाद मैंने एक रिलायबल सोर्स, किसी वजह से मैं नाम नहीं बता सकता आपको वो, हाँ जी। बट वो इज वेरी वेरी रिलायबल, मतलब हाँ जी। कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, और अभी कुछ खास मिला नहीं है इसके ऊपर, मतलब। हो ठीक है। सकता है शायद मिल भी जाए थोड़े समय के बाद,
और इसीलिए उन्होंने मुझे ये कहा कि शायद हो सकता है कि वो लोग आपको कुछ बता नहीं रहे, क्योंकि कुछ होना भी चाहिए ना बताने के लिए, मतलब हाँ तो जी, इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, मतलब अब क्या है दैट्स कि गुड। इसके चलते कुछ मीडिया आउटलेट्स ने कुछ, एक पता नहीं है क्या, दो किसने, कुछ लोगों ने रिपोर्ट्स वगैरह डाली हैं, और मैंने कोई रिपोर्ट इस पे अभी तक लिखी नहीं है, क्योंकि मेरे पास पूरी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं है अभी इसके ऊपर। हाँ जी, द ओनली क्रेडिबल थिंग आई हैव इज कि बैप्स का जो टेम्पल है, जी, उनका जो स्टेटमेंट है वो मेरे पास है। ठीक किसी है, और ने भी शायद स्टेटमेंट दिया है, पर उन्होंने मेरे को नहीं भेजा है ऑफिशियली। ठीक है। हाँ, तो नहीं, दैट्स व्हाट वी मैंने सोचा वांट। कि मैं आपको ये बता दूं कि जस्ट टू कंक्लूड, दे हैव अपील्ड फॉर पीस, वेरी गुड, and we have to wait for the investigations to complete and then see what happens next. एब्सोल्युटली। एंड दिस इज द राइट अप्रोच टू टेक, एंड आई एम श्योर जो विक्टोरियन पुलिस है, दे विल डू व्हाट इज राइट। हाँ, एंड हमारी विक्टोरिया के पुलिस, मनबीर जी, बहुत एफिशिएंट है, बिल्कुल, और अक्सर वो हमारे मीडिया के साथ कोलैबोरेट करते हैं, और वो हमसे कभी छुपाते भी नहीं है कुछ भी। ठीक है। तो आई एम श्योर दे आर एफिशिएंट, और या दैट्स इट। तो अब अगली खबर पे चलते हैं। जी, थैंक यू। अगर बीच में प्रोग्राम के कुछ आया इस बारे में, तो मैं बीच में आपको अलर्ट कर दूंगा। ठीक है जी, तो अब एक पॉजिटिव न्यूज की तरफ चलते हैं। वेरी गुड। इरशाद। अब फिल्म निर्माता एस राजमौली की वर्ल्ड वाइड सुपरहिट तेलुगु, तमिल और हिंदी मूवी RRR हम्म, में कंपोजर आई डोंट नो हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, किरवानी है वो जो भी है, के गीत नट्टू नट्टू को अमेरिका में 2023 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड मिला है, मतलब। वाओ, दैट्स तो ग्रेट। इसके कंपोजर्स हैं, मैंने इसके ऊपर स्टोरी की है साउथ एशिया टाइम्स की वेबसाइट में, तो आप लोग उनको उनकी जो अवार्ड है उसके साथ उनकी फोटो भी देख सकते हैं। और उन्होंने जो स्पीच दी है मीडिया को हाँ आफ्टर जी, गेटिंग द अवार्ड, मिस्टर MM ने, हाँ जी, जो कंपोजर है, वो आप स्पीच सुनिए, वो बहुत अच्छी स्पीच उन्होंने दी है उसके ओके, ऊपर। और स्क्रीन पर ये गीत जो है वो NT रामाराव जूनियर और राम शरण पर फिल्माया गया है, और इसमें जबरदस्त म्यूजिक और डांस का कॉम्बिनेशन है, बहुत मतलब जबरदस्त है, मतलब ये इसीलिए इसमें एक यूनिकनेस है। तो ये फिल्म तेलुगु, तमिल और हिंदी वर्जन में थी, और काफी, आई थिंक अबाउट अराउंड हाफ मूवी मैंने हिंदी वाली देखी हुई है मैंने, पर पूरी नहीं देखी। और ये काफी हिट रही, और आजकल नेटफ्लिक्स पर धूम मचा रही है ये फिल्म काफी टाइम से, मतलब दैट्स नाइस। कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट हिट एवर इन इंडिया आफ्टर बाहुबली, मतलब ये मूवी जो है, और यप, ये अवार्ड जो है पहली दफा किसी इंडियन मूवी में किसी गाने को मिला है, मतलब। तो और इसका एक कंक्लूजन ये भी है कि किस प्रकार से साउथ इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इंडिया में अब डोमिनेट करने लगी है, ये भी इससे प्रूव होता है, मतलब इस गाने के अवार्ड। दैट्स गुड। आगे चलते हैं। उधर आज की Wire.in में एक रिपोर्ट के अनुसार WHO ने कहा है कि भारतीय कंपनी जिस पर उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की कफ सिरप पीने से मौत हुई का आरोप था, में टॉक्सिन्स पाए गए हैं। टॉक्सिन्स का मतलब होता है जहर, मतलब सॉर्ट ऑफ ए पॉइजन, ये स्टोरी which जा नहीं रही है ये। हाँ, अलग अलग इसके हाँ, पहलू जान ही निकल रही रहे है, हैं। लेकिन ये एकदम लेटेस्ट है, मतलब कोई 2-2.5 घंटे पहले की। WHO ने इस कंपनी के जो 2 प्रोडक्ट्स हैं उसके विरुद्ध विश्व भर में, मतलब एक तरह से अलर्ट कर दिया है कि भाई इनको यूज मत करे कोई भी, मतलब। और मैरियन बायोटेक नामक इस कंपनी का लाइसेंस पहले ही इंडिया की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने उसको खत्म कर दिया, उनके लाइसेंस को। अब वो कोई भी दवाई वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और अभी तक कंपनी ने इस मामले में कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन दी है किसी को, मतलब वो मतलब लुप्त हो गए, मतलब बिल्कुल इसमें। अब चले मनबीर जी बांग्लादेश। ओके, एक समाचार के अनुसार जो इजराइल के न्यूज़पेपर हर्ट्स HARTEZ में छपा है, बांग्लादेश ने इजरायली कंपनी से व्यापार में रोक टोक के बावजूद इजराइल से 12 स्पाईवेयर्स खरीदे हैं, मतलब अच्छा, जो जिससे वो आम जनता पे स्पाइंग कर सके, मतलब या जो वनरेबल लोग हैं उन पे स्पाइंग कर सकें, मतलब कि बांग्लादेश में इसके ऊपर बैन है, उसके हाँ, बावजूद सरकार ने वो खरीद लिए। इसके साथ 2019 और 2021 में बांग्लादेश के स्पाइंग डिपार्टमेंट ने और रैपिड एक्शन बटालियन, ये काफी नोटोरियस है, जो ह्यूमन राइट्स वाले इसके बारे में काफी लिखते हैं,
ने 2 इजरायली कंपनियों से दूर संचार निगरानी केंद्र और एक स्पाई वैन भी खरीदी उन्होंने स्पाइंग करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या हालात है मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो अब देखिए मतलब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब पता नहीं बड़ा मियाँ कौन है और छोटे मियाँ कौन है, वी डोंट नो, यू नो। तो एनीवे पेगासस के बाद में सब कुछ ही छोटा लगता है। अब पेगासस इज नॉट द ओनली स्पाईवेयर, देयर आर मेनी अदर्स मेड इन इजराइल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये जी। उधर जी जनाब मनबीर जी जो उत्तराखंड के शहर जोशीमठ का इशू तो आपको पता ही है, वो चल रहा है। उसके अनुसार बताइए वो हमारे शहर लिसनर्स में को, स्पिन बताइए कर इसके रहा है। बारे में हमारे लिसनर्स उसमें को। 25-30 हजार लोगों की पॉपुलेशन है, छोटी जगह है वो जी। और वो काफी रिलीजियस प्लेस है और वहाँ वो टूरिज्म पे डिपेंड करती है वो। वहां पे 800 घरों में दरारें पड़ गई हैं, मतलब 800 होम्स, और काफी परिवारों को वहां से शिफ्ट करा जा रहा है और लोग बहुत अपसेट है इस चीज से। मतलब और अब वो जाए क्यों तो पड़ रही हैं दरारें? दरारें वो मैं बताता हूँ, आगे आ रहा हूँ मैं जी। तो जी स्टेप बाय स्टेप। हाँ अब जी, सस्पेंस। डेंजरस घरों और होटल्स की डेमोलिशन भी शुरू हो गई है, मतलब उन पे क्रेन चलनी शुरू हो गई है और हालात बहुत खराब है, और क्योंकि कोई भी हर्ट हो सकता है अगर वो उन घरों में रहे तो। मतलब बिल्कुल। अब इन्वायरमेंटलिस्ट के अनुसार जोशीमठ में 4 धाम प्रोजेक्ट और एक हाइडल प्रोजेक्ट बन रहा है। हाइडल प्रोजेक्ट बिजली बनाने के लिए जी। 4 धाम प्रोजेक्ट है जो अलग अलग जो स्पिरिचुअल एरियाज है उनके लिए सड़कें, ये पुल वगैरह सबको मिला के उस प्रोजेक्ट का नाम है कि निर्माणों के चलते जो इकोलॉजी है उस एरिया की वो डिस्टर्ब हो गई है पूरी तरह। जैसे मान लीजिए मनबीर जी, अगर कोई पहाड़ है उसके नीचे से आप खोदना शुरू कर दें तो ऊपर से हिल जाएगा वो, एक बड़ी बड़ी सिंपल लॉजिक है। बिल्कुल। तो इस पर अब है और इन प्रोजेक्ट्स को इमीडिएटली स्टॉप कर दिया गया। तो मतलब जो बना था वो भी गया, मतलब बेसिकली, और शहर भी गया मतलब। तो अच्छा, कॉम्पनसेशन वगैरह तो अभी दूर की बातें हैं, जिन्होंने घर बनवाए और जो नीचे खुदाई हो रही है वो सब। सरकार ने उन लोगों को हेल्प करने के लिए कुछ जो कुछ है कि मनी जो है वो अनाउंस किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम भी हों, कोई हमारा घर चला जाए, थोड़े कुछ मनी हाथ में आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। मतलब हाँ, नहीं, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, बट एनीवे थिंग्स आर बीइंग डन आई सस्पेक्ट, दैट्स गुड। और उस पर इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। उधर गार्डियन ऑस्ट्रेलिया में छपे एक समाचार के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के सिविल एविएशन सेफ्टी अथॉरिटी ने बोन्जा BONZA नामक एक बजट एयरलाइन को मंजूरी दी है, सस्ती एयरलाइन। वेरी गुड। और शीघ्र ही उनके CEO टिम जॉर्डन के अनुसार ये लो कॉस्ट कैरियर जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, मतलब कि विद इन ऑस्ट्रेलिया मतलब। और बोन्जा जो है, ये जो एयरलाइन है, इसने 8 बोइंग 7378 MAX को सर्विस के लिए प्राप्त कर रहे हैं। मतलब इसमें से कुछ ऑलरेडी इनके पास अवेलेबल है और ये सर्विस जल्दी शुरू हो जाएगी। मतलब ये रीजनल एयरलाइन होगी मतलब? हाँ जी, ये उसमें गार्डियन ऑस्ट्रेलिया में थी ये खबर। ये मतलब बिजनेस न्यूज है बेसिकली। हाँ, बट रीजनल ऑस्ट्रेलिया के लिए रहेगी ये एयरलाइन या इंटरनेशनल? नहीं, रीजनल है, ये रीजनल है, ओके, लोकल है। जैसे अगर सपोज करिए मनबीर जी को घूमने जाना है जी, तो वो इसमें जा सकते हैं। ठीक है। बट एक्चुअली में हाउ मच बजट इट विल बी रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि ये जब आएगी तभी पता चलेगा। और पहले भी बजट एयरलाइंस कई कोलैप्स हो चुकी हैं मतलब। जी, ऑफ कोर्स। तो एक न्यूज के अनुसार म्यांमार, यानी कि जिसको पहले जमाने में बर्मा कहा करते थे, जी, कि हवाई जहाजों ने भारत के साथ जुड़े बॉर्डर पर प्रो डेमोक्रेसी मिलिटेंट्स जो हैं उनके अड्डों पर बमबारी की। मतलब जैसे 1-2 दिन पहले की बात है ये। ये एयर स्ट्राइक चिन प्रांत, वहां पे एक चिन प्रांत है CHIN में, चिन नेशनल आर्मी जो कि डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रही है अलॉन्ग विद मेनी अदर्स इन बर्मा, उनके हेडक्वार्टर्स है वहां पे इंडिया के बॉर्डर पे के साथ। बिल्कुल खबरों के अनुसार कुछ बम इंडिया के अंदर भी गिर गए मतलब। ओहो। बट अभी कुछ इंडिया से इस पे प्रतिक्रिया आई नहीं है मतलब। और 1-2 खबरें और बता दो मनबीर, प्लीज आपका अंत में। और ऊपर बिहार में की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जातिगत जनगणना कर रही है। मतलब सारी कम्युनिटीज जो है वहां पे, कोई चाहे वो कास्ट की हो या दूसरी हो या कुछ भी हो,
उनकी उनकी जो जनगणना कर रही है, वो कौन किसके कितने लोग हैं, मतलब वहाँ पे, किस कम्युनिटी के, हाँ जी, ताकि ये पता चल सके कि किसकी कितनी संख्या है और गवर्नमेंट के प्रोग्राम को उन पर किस प्रकार से लागू किया जाए। सपोजिंग आपने किसी के लिए रिजर्वेशन की हुई है, अब आपको यही नहीं पता कि उनके लोग कितने हैं, तो हाँ, हाउ नहीं विल नहीं, यू वो इम्प्लीमेंट? सर्विसेज। हाँ, तो ये उनका लॉजिक है इसके लिए, परंतु ऑपोजिशन भाजपा जो है इसका विरोध कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट में भी किसी ने इसको चुनौती दी है, इसको कि भाई इसको जो ये जो हो रहा है वहां पे, ये जो काउंटिंग हो रही है उसको रोका जाए। उनका ये कहना है कि ये सेंटर का काम है, ना कि हाँ जी, स्टेट का काम। अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई 20 जनवरी को होगी। और अब चलते हैं जी एंड में, अंत में एक हाईटेक न्यूज, मनबीर जी। बताइए। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज ने जल्द ही वापस पेन और पेपर के एग्जाम दोबारा शुरू हो सकते हैं, क्योंकि कई एग्जाम्स में स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी ChatGPT से ऐसे वगैरह लिख लेते हैं, वो एक उसमें सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, जैसे आप ऑनलाइन करने लगे और आपका ऐसे तैयार। वाह। जैसे कि आप अपना व्यू देते हैं ना कई सब्जेक्ट्स पे, तो आप एक वर्ड लिखिए और रेडी, वाह। और आप फिर उसको डाल दिया। तो चैट जीपीटी का चलन जो है नवंबर 2022 में स्टार्ट हुआ था, और कई कंट्रीज ऑलरेडी इसको बैन कर चुकी हैं। अच्छा, हमको अभी तो होश आया। अब मैं समझता हूँ कि इसको क्या कहेंगे आप, इसको पॉजिटिव टेक्नोलॉजी कहेंगे या नेगेटिव मेथड? टेक्नोलॉजी की क्या गलती है, ये तो जैसे इस्तेमाल करो वैसे है ना। जी, अब टेक्नोलॉजी का ये होता है कि कई वजह से कैमरे लगे होते हैं कई जगहों में, तो जब उसकी फोटो देखते हैं उसमें कोई नजर ही नहीं आता कुछ में। तो टेक्नोलॉजी का कैन गो दिस वे और दैट वे, दैट्स करेक्ट। बट वी आर सो अडॉप्टेड। तो आप सोचिए कि हमारे जमाने में हम पूरे साल पढ़ते थे एग्जाम के लिए, और आजकल जस्ट पुट अ सॉफ्टवेयर एंड द आंसर इज रेडी। एंड ऑफ कोर्स उसके पहले भी ये था कि भाई आपको किराए पे लोग मिल जाते थे जो आपके लिए ये एसेज लिख देंगे। कंपनीज हैं, आप इंटरनेट पे जाएं कि भाई मुझे इस सब्जेक्ट पे ऐसे लिखना है, एंड उनको एंड दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि कई सारे ओवरसीज होते हैं, 20 30 चलते 40 चलते 50। मनबीर जी, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ कि जब हमारे यहाँ स्कूल में और इवन यूनिवर्सिटी में एग्जाम होते थे ना, जी। तो वहां पर नकल कैसे होती थी। तो वो लोग छोटी छोटी चिट्स पे चीजें लिख के उसको मुट्ठी में दबा लेते थे अपने, ठीक है। और उसको को हम लोग कहते थे बम पेन। अच्छा। तो वो कहते भाई आज के पेपर में कितने बम लेके जा रहा है। पर्चियाँ, ठीक है। हाँ जी, तो बच्चे थे, बट ऐसे सब लोग नहीं करते थे ऐसे। और कई दफा है वो, जैसे आपने अपना बम है उसको यूज कर लिया, फिर उसको ऐसे उंगली से करके यो, और दोस्त को दूसरे दे बंदे के पास फेंक दिया, फिर उसके बाद वो शुरू हो जाता था उसमें। सो दैट्स इट फॉर टुडे मनबीर जी। थैंक यू और अगर कुछ मिल पार्क के इंसिडेंट जो टेम्पल का इशू है, जी। उस पे अगर कुछ पुलिस का हो सकता है ईमेल वगैरह आ जाए, तो ठीक मैं है। बीच में ही आपको चैट पे लिख के बता दूंगा। एंड थैंक थैंक यू यू। वेरी मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। Thank you, and that is very nice. And Neeraj Nanda ji, southasiatimes.com.au इनका पोर्टल है, प्लीज़ डू गो एंड विजिट दैट। वहाँ पर यू विल गेट, जैसे ये खबरें देते हैं, वेरी बैलेंस्ड, एंड उसमें कोई भड़काने वाली खबरें नहीं है, वेरी बैलेंस्ड खबरें हैं। तो आई थिंक वन ऑफ द वेरी गुड सोर्सेज ऑफ न्यूज़ इन ऑस्ट्रेलिया फॉर एक्सपैट्स लाइक अस। तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू नीरज जी, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। अपना ख्याल रखिएगा। सो ये नीरज नंदा जी हैं, एंड हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी मकर हैप्पी संक्रांति। लोहड़ी। आप पतंग उड़ाते थे कि नहीं? हाँ, मैं पतंग उड़ाता था, और दूसरों की को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बताऊं आपको हम क्या करते थे हाँ, मनबीर क्या जी? गेम खेलते थे बताइए। जो हमारे वो कोठे ते चढ़ के, हाँ। पंजाबी में कहते हैं कोठे ते चढ़ के सी पतंग उड़ाते थे। वाह वाह। तो जो हमारे आगे की बिल्डिंग होती थी, हम उनको पत्थर मारते थे ताकि वो उसकी तरफ देखने लगे और उनकी पेच काट दें फिर हम। तो ये बड़ी टैक्टिकल पतंग आप उड़ाया करते थे। थैंक यू। हाँ हाँ, नहीं पतंग उड़ाते थे। और एक चीज और थी जिसमें बहुत मजा आता था, खास तौर पे वो, एक तो 15 अगस्त को पतंग उड़ाते हैं, अच्छा। एक बसंत वाले दिन उड़ाते हैं, और एक 26 जनवरी को। अच्छा, ये मुझे नहीं तो पता था, 15 अगस्त और हाँ, 26 दिल्ली में ऐसा चलन था। ओके। और कुछ लोग मकर संक्रांति पे भी हाँ।
उन दिनों में मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे पता नहीं था मकर संक्रांति के बारे में ज्यादा। ठीक है। तो शादी के बाद तो बहुत कुछ पता लग गया आपको, चलिए। हाँ जी, तो फिर वो है ना कि मतलब वो पतंग, अच्छा क्या होता था कि वो जब हमारी पतंग मतलब कट कुट के खत्म हो जाती थी जी। और हमारे पैसे भी खत्म हो गए हमने, फिर हम उतर जाते थे कोठे से नीचे गली में, हाँ। और फिर हम जो दोनों की कट के आती थी, कहते हैं पतंग लूटना, मतलब भागना पतंग के पीछे। फिर हम पतंग लूटते थे और उसपे बहुत झगड़ा होता था आपस में, मतलब। Yep. तो तो आजकल वैसे कई स्टेट्स में चाइना के मांझे को लेके डिबेट चल रही है। अच्छा। मेरे माइंड में है कि वो जो मांझा होता है ना, जिसको कहते हैं हाँ, पंजाबी में मांझा। पतंग का मांझा, हाँ जी। हाँ हाँ जी, तो उसमें वो होता है कि शीशे के दाने होते हैं उसके अंदर, हाँ मतलब जी, हाँ जी, मेक इट स्ट्रॉन्ग, तो वो हाँ जी। चाइना से इंपोर्ट होता है, मतलब। वाह। ओके। तो उस पे बैन लग गया इंडिया में, ऐसा सुना है कुछ स्टेट्स में, अच्छा। मतलब। ओके, चलिए। तो ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप नेक्स्ट टाइम and up to the next program we continue to live in harmony and peace, man. एब्सोल्युटली, मच नीडेड, मच नीडेड। थैंक यू। Thank you again. अपना ख्याल रखिए। सो ये नीरज नंदा जी थे, एंड व्हाट अ गुड मैसेज, लिव इन पीस एंड हार्मनी, क्योंकि वी डोंट वांट इट टू बी फिनिश्ड। हम लोगों को, जैसे इंडिया में इंडियंस रहते हैं पीस एंड हार्मनी में इतने सालों से, वी वांट टू कंटिन्यू दैट। सो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते, मैं मनबीर सिंह कोहली हूँ। और यस, एंड नवनीत मित्तल जी कह रहे हैं कि वेरी सैड एंड नॉट एक्सेप्टेबल, एंड ऑफ कोर्स ही इज टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट ऑफ द टेम्पल इन मिल्स पार्क इन मेलबर्न। अतीफ डंग कह रहे हैं नमस्कार और लोहड़ी दी लख लख बधाइयाँ। एंड सुमन माथुर जी से आज कमेंट बड़े कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन आई होप वो अपने कमेंट्स जारी रखेंगे। ये थोड़ी सी म्यूजिक, फिर मैं कोशिश करूंगा संजय देशवाल जी को लेके आने के लिए। ये बातें खामोशी की सुनो ना, क्या बोले शाम की कलम, सुनो ना, ये संग संग बदल रहा, सुनो ना, है ये बदले बदले सी उमंग, कहीं चल खो जा जरा, कैसी है ये मदहोशियाँ, तेरी है ये परछाइयाँ, पल भर का है हिस्सा तेरा आसमां, लम्हों से भी कह दे जरा, तेरी भी तो कुछ खामियां, लहरों से भी सुन ले जरा दास्तां। ठीक है। अजनबी राहों में मेरे संग है कोई रह गुजर, है दिल पे छाई बेचैनी, यादें है तेरी मेरी हम सफर, है सिर्फ तू मेरे ख्यालों में, है मेरे ख्वाबों में। सो दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं कहते सुनते, और मैं हूं मनबीर सिंह कोहली, और मेरे साथ शायद अभी जुड़े हैं संजय देशवाल जी। संजय जी, आप यहाँ पर हैं कि यहाँ पर हैं? संजय जी, ओहो, एक मिनट, लेट मी गेट हिम बैक। ओके, लेट मी ले, ये सब शो के दरमियान कर रहा हूँ मैं लाइव, बताइए इतना मुश्किल काम, लेकिन संजय जी यहाँ पर छुपे हैं। संजय जी, कैन यू हियर मी? हेलो संजय जी। एक मिनट, हेलो, हाँ जी संजय जी, कैसे हैं आप? मनबीर जी नमस्कार। हाँ, अभी मैं आपका पोस्टर दिखा रहा था, अर्जुन रामपाल। हाँ, तो संजय देशवाल मेरे साथ जुड़े हैं। संजय इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ लिटिल इंडिया हैरिस पार्क बिजनेस एसोसिएशन, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं हैरिस पार्क के अंदर जिसके बारे में वी विल क्विकली टॉक, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अर्जुन रामपाल कमिंग एंड होइस्टिंग द इंडियन फ्लैग। तो बताइए क्या हो रहा है संजय जी? मनबीर जी,
like Harris Park, as we know, is becoming like with the parameter, like the epicenter of the Indian community. जी So बहुत अच्छी बात है कि आप तो हमारे साथ कितने इन्वॉल्व रहे हैं, जैसे फर्स्ट टाइम लाइव रेडियो आपके साथ हमने किया था वहां पे। जी उसके अलावा सबसे पहला दिवाली फंक्शन स्ट्रीट फेस्टिवल के रूप में हैरिस पार्क में हुआ था 2017 में। हाँ जी इसके बाद सबसे पहले सारी बिल्डिंग्स को एक जैसी लाइटों से 2019 में हमने स्टार्ट किया था वहां पे। हाँ जी तो फर्स्ट टाइम लाइटिंग ऑफ यस हैरिस पार्क। इसके बाद आपको याद होगा कोविड के बाद जब ये सारी आर्ट एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज रुक गई थी, जी तो जब ये 2021 में ओपन हुआ, जी तो यू आर इन्वॉल्व विद अस द स्ट्रीट फेस्टिवल, जिसमें Absolutely, yeah. वो भी हम लोगों ने वहाँ पे कलर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट काफी फेस्टिवल करे। और अभी यू वुड बी हैप्पी टू नो कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम क्रिसमस इन हैरिस पार्क करी थी। Amazing, yes, I missed it, yes. क्योंकि व्हाई नॉट वी हैव ऑल द इवेंट्स, एंड नाउ आई थिंक सो आई वुड लाइक टू इनवाइट योर टीम एंड पीपल लाइक तौफीक एंड अभिजीत जी, such talented people you have. Yep. And we'll do something about like one of the what do you call, we are talking to Parameter Mosque also. हम एक वहाँ ईद का फेस्टिवल भी करना चाहेंगे। Wow. फिर एक आपके साथ मिलके गुरु पूरू करेंगे। क्योंकि इंडिया इज लाइक इंडिया इज अ मिक्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स और सो मेनी कल्चर्स। बिल्कुल तो क्यों नहीं, ये जैसे आज इतनी सैड न्यूज है कि बताइए टेंपल पे कोई अटैक हो रहा है, मतलब इट्स वेरी डिप्लोरेबल। Absolutely deplorable. यार वो इकबाल साहब की वही पुरानी लाइन याद आती है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना। बिल्कुल बिल्कुल एंड मोर इम्पोर्टेंटली जब ये ऐसी हरकत हो जाए जो कि डिप्लोरेबल है, उसके बाद में हाउ डू वी रिएक्ट, वो ज्यादा जरूरी है। ये सब देखिए तो लेट द लॉ, आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, शायद आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि आजकल सोशल मीडिया पे क्या हो गया है कि लोगों ने एक मतलब आई थिंक सो सोशल मीडिया इज लुक टू बी ऑनेस्टली विद यू, इट्स अ मार्केटिंग एंड अ फन प्लेस टू बी, फैमिलीज के साथ शेयर करने को, दोस्तों के साथ शेयर करने को। आई डोंट नो कहाँ से एक नेगेटिव एलिमेंट आ चुका है कि लोग मतलब सामने जाके बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, तो उल्टी सीधी बातें फेसबुक पे लिख रहे हैं और मीडिया में लिख रहे हैं, इससे गलत रूमर्स भी उड़ाते हैं। जिनको कुछ जिनकी बातों का कोई बेस नहीं होता, आधार नहीं होता, वो लोग बैठे फेसबुक पे लिख रहे हैं। आप बताइए किस वजह से, क्या मिलता है उन्हें? अभी हम सब जर्नलिस्ट हैं, हम सबके हाथ में मीडिया है। आपके पास में अगर स्मार्टफोन है तो आप मीडिया है, आपके पास आप जर्नलिस्ट हो गए हैं। सो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है उसमें, कोई यू डोंट नीड टू बी आंसरेबल टू एनीबडी। आपको जो अनाक शनाक बकना है आप बक सकते हैं। मनबीर जी, that is something I think so people, the police, I think so authorities do watch all these things. बिल्कुल। काफी जैसे आप लोग हैं, अब आप बताइए कितने टाइम से, मेरे ख्याल से मैं जब से कितने साल हो गए मुझे, मैं रेडियो में कब से आपका प्रोग्राम सुना करता था जी। जब आप मोनिका गीतमाला में आप मतलब चेंजेस ऑफ आइडियाज ऑफ चेंज, आप कितना अच्छा बोलते थे वहां पे। तो सोचिए देयर आर पीपल लाइक इन द मीडिया, लाइक फॉर एग्जांपल पवन लूथरा जी हैं, इंडिया तेजवाली, मीनू, देयर आर न्यूज़पेपर्स फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। सो दैट इज द रियल मीडिया। जो लोग आप जैसे लोग जो रेडियो पे हैं या टीवी में तो खैर अभी इतनी शख्सियत नहीं है हम लोगों की, लेकिन न्यूज़पेपर में, लेकिन ये जो जर्नलिज्म, ये जो फेसबुक जर्नलिज्म, आई थिंक सो इज डिप्लोरेबल। पीपल शुड स्टॉप फॉलिंग डाउन टू दीज लेवल्स। ठीक है, चलिए लेट्स कम टू द पॉजिटिव। आप बताइए, अर्जुन रामपाल आ रहे हैं एंड 26 जनवरी को फ्लैग होइस्टिंग होगी in Harris Park, is that correct? 26 जनवरी को। yes, देखिए एक बहुत अच्छी बात हम यही बता रहे हैं, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एक चीज अच्छी है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त हम सब इंडियंस को यूनाइट करता है। तो वी आर गेटिंग अ ए ग्रेड बॉलीवुड स्टार अर्जुन रामपाल जी, जो कि बड़े अच्छे, इन्होंने राजनीति वगैरह काफी पिक्चरों में आके में अच्छे रोल किया ना, इज गॉट अ वेरी गुड पर्सनालिटी। तो ही पर्सनली वुड बी कमिंग एंड 2 इवेंट्स एक्चुअली हमारे 26 तारीख को, इट वुड बी लाइक विद Andrew Charlton, Jeff Lee, all the and the Lord Mayor and all the what do you call, councillors and dignitaries. We will have a flag hosting and a Republic Day kind of a walk over there, parade. Parade के लिए तो देखिए हम एक दिन तो खैर हमारा सपना है कि हम यहाँ 26 जनवरी की तरह पूरी सड़क रोक के एक बनाएंगे, लेकिन उसके लिए बहुत परमिशन और बहुत प्लानिंग चाहिए और इंशाल्लाह पूरा होगा वो तमन्ना भी हम लोगों की। लेकिन फिलहाल अभी एक इतने अच्छे स्टेटस का मतलब बॉलीवुड स्टार इज कमिंग टू हैरिस पार्क, व्हिच पीपल विल बी डिलाइटेड टू सी। तो ये हम कर रहे हैं और इसके बाद 28 तारीख को हम इनका मीट एंड ग्रीट डिनर कर रहे हैं ग्रैनवेल में। ओके, ऑलराइट। तो इसमें मेरे जो पार्टनर हैं वो नितिन सेतिया जिंजर इंडियन रेस्टोरेंट से, और मैं संजय देशवाल 95 विक्रम स्ट्रीट एवीएमसीएस से, और विकी पॉल, तीनों लोग इन्वॉल्व हैं। तो वेबसाइट पे सारी डिटेल्स हैं। So people should please feel free to support us because it's a big initiative and it needs a lot of money, lot of support from the people. ठीक है, तो 28 तारीख को हो रहा है, कितने बजे और कहाँ पर?
28 तारीख को ग्रैंडविल में, ग्रैंड रॉयल में, और it will be a meet and greet dinner with a 3-course meal and a drinks and beer and wine all provided beautifully, and there will be dance performances and people have like an interaction with the star, like tell him about his experiences, how he shared the screen with Amitabh Bachchan, or what kind of roles he likes. It will be like a one-to-one, a lot of interaction over there. Fun. Very good. And अगर इसकी टिकटें वगैरह चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा लोगों को? Definitely ड्राई टिकट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम लोगों की वेबसाइट पे जाएं और आपको कांटेक्ट करें. आप you are our such a big supporter of Little India Harris Park. I always appreciate that. Yeah, no, we are happy to do that. All the best with this. हाँ जी, बोलिए. And hopefully, Manjeet, what do you call? We look forward to see you, Police Hub, on 26th and 28th, both with us. Yeah. Okay. All right. Thank you for that. And that was Sanjay Deshwal ji. And Sanjay is from Little India Harris Park Business Association, and he's organizing the 26th January ko Republic Day par Arjun Rampal from Bollywood, from the Hindi film industry, will be hoisting the Indian flag. Yeah, and that's what he's going to do. And at High School, there's a meet and greet at the Grand Royal in Granville. So, अगर आपको टिकटें या कोई और जानकारी चाहिए तो you can go to their website, Dry Tickets पर, या मुझे भी contact कर सकते हैं, या संजय देशवाल जी को भी, पोस्टर के ऊपर उनके फ़ोन नंबर्स हैं. So thank you, Sanjay. You look after yourself. Okay. Thank you, Ji. Thank you to your listeners. Bye. So that was Sanjay, and so I hope we can support all these programs that are happening in Sydney, क्योंकि थोड़े अच्छे से कार्यक्रम हो रहे हैं, क्वालिटी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, so उनको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा. और आपको बताऊं कि अलंकार प्रियदर्शी, he is also organizing something very good. इनका पहले नगमे हैं, किस्से है हुआ था आज से I think पिछले साल, and it had a very good response. और अभी फिर से वो नगमे हैं, किस्से हैं कर रहे हैं 2.0, and this is happening on in February. Sorry, or is it March? I'm sorry. It's 4th of March, and शाम के 6 बजे Pioneer Theatre in Castle Hill, 14 Pennant Street. So 4 मार्च 2023 को नगमे हैं, किस्से हैं 2.0, and of course इसमें सिडनी के कलाकार हैं, लेकिन also there are 15 musicians. ये नहीं कि 2 या 4 म्यूजिशियंस, 15 म्यूजिशियंस हैं, और इनके वायलिनिस्ट को मैंने सुना है, एंड दे हैव सम वेरी वेरी गुड परफॉर्मर्स. सो 4 मार्च को वो हो रहा है. हम लोग अगले 1-2 हफ्तों में वील ट्राई टू टॉक टू अलंकार एंड सी व्हाट वी कैन डू. बट ऑल दीज शोज आर हैपनिंग, एंड ऑफ कोर्स अगर आप क्रिएटिव हैं तो यू कैन ऑल्सो I'll put that up here. एंड अगर आप क्रिएटिव हैं तो यू कैन राइट अ स्क्रिप्ट, एंड अदाकार थिएटर एंड कल्चरल ग्रुप जो है वो स्क्रिप्ट कॉल कर रहे हैं, एंड I'll put that on the screen also. लेकिन इफ़ यू लाइक राइटिंग इंग्लिश, हिंदी या उर्दू में, तो यू कैन एंटर दैट कंपटीशन. तो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, एंड ये सब कुछ हो रहा है सिडनी में. सो इट्स अ गुड कल्चरल मौसम है हमारा. सो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, बिकॉज आई थिंक participating in culture and literature, and I think it widens our outlook in life. And Parminder ji is still there, and Singh Kumar Khan Smith, our Sunny, is also watching. So thank you for all that. Let's play some music, and then I'll try to get Chris Mallika Bhadra.
दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते, और मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली। एंड ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को आता है 8 से लेकर 10 बजे तक सिडनी टाइम 89.3 एफएम पर। एंड ऑफ कोर्स वी आर आल्सो लाइव ऑन फेसबुक, वी आर लाइव ऑन यूट्यूब, एंड वी आर लाइव ऑन कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की ऐप पर। तो और मेरे साथ अभी लाइव हैं विद इनफ लाइट ऑन हर फेस क्रिस, नॉट दैट शी नीड्स लाइट, क्योंकि उनका अपना ही एक हेलो है। क्रिस मलिका भद्रा फ्रॉम कोकोनट चैट्स फ्रॉम मेलबर्न अगेन। कैसी हैं आप क्रिस? गुड इवनिंग मनबीर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गुड। मैंने सुना है आप अभी स्टोरीज बाय अविजीत सरकार कवर कर रही थी, एंड इज दैट व्हाट्स गोइंग टू हैपन ऑन कोकोनट चैट्स? That's already recorded, so Okay. that's going to be released in a couple of days. Was a very heartwarming conversation with all the 5 directors and of course the man himself, Taufeeq and my Sheikh. So मैंने वो जल्दी से record किया because I didn't want to be late here. मैंने कहा हो गया, चलो चलो I have to go to Kite Sunte. Great. But before we proceed, मैंने ना एक line बड़े अच्छे से my Punjabi is not that very sharp, so kindly pardon errors. This is what I would like to wish all our listeners. आप सबको लोरी दी लख लख बधाई। मनवीर, was that? Yeah, अतीब से आपने सीख लिया। Yeah, but yeah, no, I think it's a great time. Whether it's Lodi, whether it is Makar Sakranti, whether it is kite flying, and I think India has so many festivals, and we are lucky कि हम सब एक दूसरे के festivals मना सकते हैं, समझ सकते हैं, and enjoy कर सकते हैं। और काश ऐसा ही वातावरण हमेशा रहे, notwithstanding whatever some pockets of idiots might do, but most people are nice and peace loving. Yeah, so we can wish for it, and hopefully that stays as it is. Yeah. तो बताइए, you have a very can parents be forgiven if they lie to the children? What does that mean? all of us are taught that lying is unfair. You should never lie. Lying is something that you don't do in a conscious state of mind. So जब बच्चे, when children lie, they are often kind of apprehended. They're kind of told that, this is not what you should do. कभी कभी डांट भी पड़ जाती है. But some occasions, if a parent chooses to lie or is forced to walk that way because of some whatever reason, can that parent be forgiven? Just because often we hear parents saying that मैंने जो भी कहा was for your betterment, या blah blah blah. So in that situation, it's still a lie, but can it be forgiven? आप पेरेंट हैं, हाँ, लेकिन देखिए, झूठ तो I mean हम लोग बोलते ही हैं, okay? Whether it is talking about Santa Claus, whether it is talking about कि हम लोग बच्चों को धर्म से कितना डराते हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया तो भगवान तुमको ये कर देंगे, वो भी तो झूठी है ना? जी जी। हाँ, तो भगवान नहीं, बट yeah, you have to give them enough knowledge so that they can make an informed decision. लेकिन झूठ तो बोलते हैं हम लोग. I mean, I'm guilty of it. Whether it is ये आपका कैमरा कुछ कर रहा है, नॉटी हो रहा है, कुछ ग्रीन, कुछ ये फटने वाला लगता है, एक्सप्लोड ना हो जाए. नहीं, I don't know what's happening, but yeah. Okay, तो किस लेवल के झूठ की आप बात कर रही हैं जो कि forgiveness पे डिपेंडेंट है? मेरे लिए तो मनवीर झूठ इज अ झूठ. चाहे आप ये बोलो कि सांता क्लॉज आ रहा है, चाहे आप कुछ मेजर बोलो, इट्स अ लाई. As simple as that. तो जब for me charity begins at home when you are kind of categorizing your life, यार ये तो Santa Claus, it's a healthy lie. But the child is kind of mirroring that कि अच्छा healthy lie बोलूंगा तो शायद मुझे उतनी punishment नहीं मिलेगी because daddy भी बोल रहे हैं कि Santa Claus is real. It's a healthy lie. So where are we drawing the benchmark? कि what is a healthy lie and what is an unhealthy lie? A lie is a lie. Okay. But can we ever be in a position कि हम झूठ बोले ही ना? छोटा, harmless, white lies. अगर 2 बच्चे हैं आपके और उनके बीच में लड़ाई हो रही है, तो to maintain peace you might want to tell a small lie so that दोनों शांत हो जाएं कि भाई नहीं, तुमने मुझे उसको एक्स्ट्रा चीज़ दे दी, and you say नहीं मैंने नहीं दी. Now
शुड कि भाई आप मेंटेन करना है पीस आपको, तो वो भी क्या गलत बात है क्या? मेरे हिसाब से मन बी लाइक आई एम नॉट अ पेरेंट येट, लेकिन हाउ आई परसीव थिंग्स इज मेरे लिए करेला इज करेला. आप उसे मुझे करेले का भरता दो या करेला, यू स्टफ इट विद एनीथिंग एल्स, इट्स ऑलवेज बी अ बिटर गार्ड फॉर मी. ओके. सेम थिंग वर्क फॉर मी कि कल मैंने अपने बच्चे को कुछ सिखाने के लिए एक वाइट लाई बोल दिया कि चलो ठीक है यार, उसने तो वो पिकअप कर लिया ना. ही और शी और दे विल ऑब्जर्व दैट ट्रेंड बिकॉज़ किड्स दीस डेज आर वेरी स्मार्ट. हमारी तरह तो नहीं है कि हम दीवार कूट के खा रहे हैं. दीस किड्स आर वेरी स्मार्ट. सो डू आई रियली नीड टू ड्रॉ दैट एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ माय चाइल्ड? Okay, लेकिन all right, because I am sort of taking some time to absorb this. लेकिन Chris Because Carey, it's sorry, not- Suman Carey कि Chris parents saying to kids, don't be afraid, there's never any spider on the dunny. Then one day, to lo and behold, a spider does appear on the dunny. तो ऐसे वाला, और कई बार शांत करने के लिए भी हो सकता है. Say there is a very dangerous situation happening and the child is scared and you say, no, don't worry, it's all good, while you know in your heart कि no, it's not good. तो उसको भी तो बहलाने के लिए या शांत करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है ना. Say for example your child is hurt or scared, तो उस टाइम पे आप उसको हौसला देने के लिए, आप उसको शांत करने के लिए, sometimes you need to give that assurance कि no, everything will be all right, and sometimes you know everything will not be all right. So क्या करें फिर? Instead of saying कि हाँ everything is fine, everything is okay, if I just reword it कि look, you are scared, mommy is scared too, we will figure something out together. How does that sound? So when you say कि mummy is also scared, so immediately you have signaled to the child that there is nobody who is in control of the situation. My mom's also scared, I'm scared, there's nobody to take control of the situation. So it can really freak the child out. But just because I'm a parent, Manbir, doesn't mean I've become a superhuman that I'll have answers to everything that's thrown at me, right? I'm a human at the end of the day. कुछ चीजें मुझे नहीं पता है. But उस टाइम पे assurance देने के लिए कि yes, look, I know I'm worried, but I can do something. I'm going to try to do something. Yeah. And हो सकता है till that time you don't have an idea कि क्या करना है. But वो भी तो झूठ है ना फिर. आप बच्चे को फिल्म दिखाते हैं, वो भी झूठ है. कि आप कहानी सुनाते हैं उसको परियों की, वो भी झूठ है. तो कहाँ पे रुकेंगी आप? मैं तो नहीं सुनाऊंगी, because जो एकदम लेजिट झूठ है वो सुनाने का कोई फायदा ही नहीं है. बिकॉज कहानियों का फायदा होता है. ये तो आप ऐसे कह रहे हैं, अभी जैसे आप जोसेफ हेलर की किताब पढ़ रही हैं, या यू सेड यू लाइक जोसेफ हेलर एंड ही इज अ फिक्शन राइटर एंड यू नो कि वो झूठ है. लेकिन वो फिक्शन पढ़ने का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आप ऐसी सिचुएशंस में जा सकते हैं जहाँ पे आप नॉर्मली नहीं जाते हैं. तो आपको एथिकल डिलेमास, इमरजेंसी सिचुएशंस, लाइफ के अलग अलग मोड पे कैसे रिएक्ट करेंगे, वो आपको सीखने का मौका मिलता है फिक्शन में, झूठ में. तो आई थिंक रीडिंग फिक्शन, टॉकिंग स्टोरीज, telling stories is a great thing, but you are talking about lying, so obviously you are differentiating. But are you never going to tell a fairy tale to your child? Is that what you're saying? See, for me, let's pick up a very simple example, Manbir. If I have a daughter or a son, and if I am planning to narrate Cinderella to them, to me, Cinderella is flawed at various levels. So something that is flawed to me, I'm never going to narrate it to my child. क्योंकि वो तो story flawed है. In fact, any of the famous fairy tales that you take up, whether it's Sleeping Beauty or Cinderella, they're all flawed, majorly flawed. तो जिसमें मुझे ही खोट नजर आ रहा है, there is no question that I'm going to narrate that story to my children. तो what about रामायण, महाभारत, वो भी नहीं सुनाएंगी आप? नहीं. तो you'll be a very boring mother यार. क्या बात क्या करोगे बच्चे के साथ? वो जो लास्ट दो आपने रेफर किया वो तो बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, तो रामायण महाभारत भी नहीं सुनाएंगे? वो तो भाई they are epics and they in fact they teach you a lot about life and ethics and right and wrong and the role of women and the subjugation of women. And to be very honest, I know what I will say might sound very controversial. I didn't find a lot of ethics in either of these. Okay. Some of these are very, very flawed. Yeah, of course I'm they are. open for conversation with anyone who chooses to do so, but something that I find flaws in, कि आप
आपकी wife, somebody's wife had to go through something as difficult as Agni Pariksha, and then you're just leaving her because some washerman tells you that maybe her character is flawed. I'm not going to share that story with my children. Okay. So, but in society, how I would say it is कि भाई ये situation है. So let's talk about that. How would you handle it? How would, Bhagwan Ram ने ऐसे handle किया? And the child might say, no, I don't agree with that. And you say, yep, that's one viewpoint. And if they face that same situation in life with themselves, then they have an option. They've seen how Bhagwan Ram handled it. They might take that option or they might reject it. The question you ask me is कि आप कौन सी fairy tale या कौन सी कहानी सुनाएंगे? Then I'm not narrating. I'm presenting a situation to them, or I'm simulating a situation and asking them, what would you do? It's not narrating. It's different to narrating something, right? Okay. So, but obviously जब भी आप story सुनाते हैं तो ये नहीं है कि it's a passive story. And then you might say, okay, so what about that wolf in the jungle and वो जो Little Red Riding Hood वाली story है, who do you think that wolf was who ate the grandmother? And obviously, you let the child think about it and let the child imagine, and imagination is very important, and creativity is important, and you are a scientist, and science may be your imagination. It's your imagination that opens up a hypothesis. Yeah, but in science, most of our imagination and hypothesis, as the term is, we back it with evidence and facts. हम लोग PhD में भी एक टेस्ट 3 बारी करते थे to prove what I'm hypothesizing is actually correct. Absolutely. But when मान ले, just let's take Sleeping Beauty, right? ये बंदी सो गई थी, and then some prince comes strutting along, he kisses her, she comes back to life. I find so much that is flawed there. तो इसको तो फिर आप hypothesis से connect कर ही नहीं सकते. Far from that. And the concern that I have is कि बच्चे they pick up trends very easily. तो फिर 18 years down the line, if my child picks up a trend that, okay, my mother might be a bit too much into these things, whatever, he or she or they start lying about their life. They start hiding about aspects of their life कि चलो इसको cover up करने के लिए कोई भी झूठ बोल दो, because I don't think mommy is going to understand it. या ये तो मैंने खुद देखा है मम्मी को करते हुए. That is the concern that I don't want to, kind of bring into the household. Okay. So Suman Mathur is saying fiction is essential to building capacity to imagine. Ghosts, fairies, flying witches still excite me. Absolutely. And Pankaj Upadhyay कह रहे हैं सबको naman, salam and love. And Renu Singhal ji, hello Renu ji, कैसी हैं आप? बड़ी अच्छा लगा आए हैं. And she's saying if everyone speaks only truth, third world war की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. And of course Suman Mathur कह रही है कि Chris, parents saying to kids, don't be afraid, there's never, ये तो हम पढ़ चुके हैं. So, yeah, so fiction has its own place. And of course, you're talking about, but look, as a parent, by the way, you are in a discotheque. It's all green and you're dancing. And so, yeah, what is happening? अभी सच बता दो, झूठ मत बोलना, क्या हो रहा है? I don't know, Manbir, ये शाम को when I was conversing with these guys ना, तब भी मैं देख रही थी मेरे स्क्रीन पे कुछ ना कुछ चल रहा था. I think my laptop needs a reboot और पता नहीं overheat हो रहा है. That could be a problem. या तो आप डिस्कोटेक में बैठी हैं और हमको झूठ बोल रही हैं. डिस्को कौन सा डिस्कोटेक इतना अंधेरा होता है मनबीर? देखो तो अंधेरा ही होता है, लेकिन वहाँ पे लाइट्स ये स्ट्रोब फ्लैश करता है ना, जैसे डिस्कोटेक में कोई कुर्ता ऐसे पहन के थोड़ी ना बैठेगा. आई वुड हैव worn something more flashy, so I'll be a very boring person in the disco as well. ये डिस्को, आजकल डिस्कोस होते हैं क्या? अभी तो डिस्कोस खत्म हो गया ना, अभी तो you have the dance floor in the club, right? So you kind of just go there, hang out. Yeah. So those, I haven't been to either discos or to nightclubs actually. मैंने एक बार क्लब हॉप किया था back in 2018. So 5 clubs, one after the other. उसके बाद तो पैरों की लग गई थी. So but it was. Suman Mathur कह रही है कि kissing to revive was old times resuscitation. Yeah, possible, and. You kiss and suddenly that frog turns into a prince. What a hopeful story. कि भाई, कि you could have not the Prince Charming, but you can convert the Prince Charming with your love and affection. But I'm not a governess for the frog that I will take care of his conversion and turn him into a man.
Yeah, but you have to be. So, So, you're still waiting for Prince Charming. hey, I'm not waiting. I'm just waiting for a normal man. That's it. He Yeah, doesn't yeah. have So that normal man you could turn into Prince Charming, just with your yeah. love and care. I don't have those grooming abilities which his Okay. mother might. Okay. If his mother had those grooming abilities, he would be Prince Charming by now. ऐसा हर mother actually सोचती है कि her son is Prince Charming. That truth is stranger than fiction. So, okay, because I see lying as harmless lying, as choti lying, and of course, बाद में when say if my kids are fighting and मैंने कुछ गलत decision लिया, for instance, if I've been, if I've given one of the children something extra and the other one gets upset, and I'll say नहीं 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 मैंने नहीं दिया, या उस time पे I'll tell a lie, keep the peace, and then later on when things are cool, I'll say, yeah, this happened, sorry about that. Lekin, so, yeah, but at least you are owning it up, Manbir. A lot of people don't own it up. When kids come back with a question, they are met with denial. ऐसा क्या है? हमने तो कुछ नहीं किया, blah blah. That is a problem also. You are owning it up. Somebody else might not. Yeah, but many times I might not see it. Abhi, my children sometimes will say, while talking to us, you're on the phone, and I say, no, I'm not. Possibly I can't see it, and हमारी उस पे लड़ाई होती है फिर, and I am adamant कि नहीं भाई मैंने तो नहीं किया, लेकिन वो सोचते हैं, तो फिर उस केस में they will think I'm a liar while I don't think so, तो फिर पंगा पड़ गया, फिर क्या करें भाई? Matter of perception. जैसे हमारे घर में अक्सर होता है, मैं मम्मी के साथ बात कर रही होंगी, and the house help will be working as well. So I can sense it कि मम्मी बात तो कर रही है, but she has that attention on the house help as well. कितनी दफा तो we have kind of stuck our horns together. I tell her, मम्मी आप उनसे पहले काम कराओ, then you come and नहीं नहीं I'm focusing on you, and then 2 minutes later, अरे तुमने वहाँ पे झाड़ू नहीं मारा, and I'm like मम्मी ये multitasking focusing नहीं होगा. So तो फिर क्या करें ना, वो भी तो जरूरी है. She also has to do that. So because you are not picking up the झाड़ू ना. If you pick up the झाड़ू, my झाड़ू ना, यहाँ पे तो I have to pick up my झाड़ू and clean the house. Yeah. So I tell her, कि mummy, it's very easy. You get that work done, and then you call me when you're done with all of that. Neeraj Nanda ji कह रहे हैं fiction is a distorted version of reality. Yeah, okay. But I think fiction is necessary because it teaches us a lot of things. It teaches us how to be in situations, how to react, how to act on those situations. And so I see a lot of sense. And similarly with all these stories, and हम लोग, I know we can deride religion, लेकिन उसके पीछे जो कहानियाँ हैं, हमको पता भी होता है कि हाँ इसमें झूठ है, लेकिन वो कहानियों से सुनने का, अभी जैसे वो क्या बोलते हैं जो इंडिया में वो स्टेज करते हैं, डू दे स्टेज महाभारत और रामायण, रामलीला. Okay. Everybody knows कि भाई a monkey can't fly and a monkey can't talk, but still there is that beauty of looking at non-humans and handling those ethical dilemmas and the treatment and all that. So we still watch it. Everybody knows the story. There is no उसके अंदर कोई. The way I would like to term is all good and well until it's not affecting your capability to think in a rational manner. Because आप और मैं दोनों जानते हैं कि इन stories का इतना after effect इतना भारी होता है, we kind of override everything and start taking them as words of truth, which is detrimental. फिर तो हमने फिल्में भी नहीं देखनी चाहिए और फिल्में दिखानी भी नहीं चाहिए. फिर सिर्फ बच्चों को डॉक्यूमेंट्रीज दिखाओ और वो डॉक्यूमेंट्रीज भी पता नहीं किसने बनाई हैं. We don't know कि क्या सच है क्या झूठ है. Hey, I've watched a couple of documentaries on these German concentration camps. Yep. I don't think anything is hidden there. Anything is a false narrative of what happened there. But अगर आप कोई movie देखोगे, the facts will be twisted and contorted, and it's a whole different story altogether. Yeah. So yeah. And Taufeeq कह रहे हैं कि भाई reality is collective hallucination. Yep. So we are all imagining reality. हमको पता ही नहीं कि reality क्या है. And what is reality, of course. But anyway, look, Makar Sakranti is a festival, and I don't know how true
or false the stories are behind it. लेकिन मजा आता है पतंग उड़ाने But में. you didn't tell me, Manbir, कि मेरा वो Punjabi, was it all on It was point? fantastic. Or? It was fantastic. Yeah. Thank It was fantastic. And yeah, so that's great. But thank you, Chris. So Chris does Coconut Chats. You can watch it on YouTube. And also, she comes and talks to us every week on some very important and curly topics, as was today. Most times we don't agree. And I'm keeping a recording of all this. Or when she gets married, when she's when she's married and has kids, I'm going to bring all these out of the time capsule and play them to her. And and Manjusha is here. Okay, by the way. Okay, let me just sign off on our radio live. 89.3 FM say we are going off air, and we'll stay on Facebook for a little while and YouTube. So keep watching us there. So signing off on 89.3 FM. And yep, so that's done. And yeah, Manjusha says, you know how the maids are, but I'm talking also, but no, you can't talk to the maid. Yeah, so what does that mean? Sorry. And a single child is always pampered. That's right. See, I'm one of three. I'm the youngest. So I know nobody cared about me. You know, people would be talking, "Oh, sunte hi nahi the meri baat." So I don't have any pretensions कि भाई मेरी बात नहीं सुन रहे तुमको मेरे को तकलीफ होगी. So but being the only child, I think Chris is quite spoiled. As her No, mother is. Manbir, when you are the only child, you get both in equal measure. जब आपको प्यार मिल रहा है वो भी मिल रहा है, लेकिन जब डांट पड़ रही है वो भी पड़ रही है. So there is no other sibling I can direct that anger to. वो भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है. But mummy is always of the fact that नहीं तुम तो we are always conflicted about this topic. So yeah. चलिए, आप अपना ख्याल रखिए. Have a good night. Take Thanks, care. Manbir. Yeah. Yep. So that's Chris Mallika Bhadra from Coconut Chats. You can search that on YouTube. And of course, she joins us every Thursday night with some subject that is weird and curly. So this is Manbir Singh Kohli signing off from Kehte Sunte tonight. I'll play a little music and then I'll wish you good night. Take care. See you next week.